Chairman Saurabh Ajmera sir. Before we start the session, I request Saurabh sir to address the members. Good morning, one and all. I believe we are here to have some master class, so I can expect little more energy from your side. Good morning. So Vimal Jain sir is joining in 10 minutes. I was supposed to do opening remark during his presence, but to save the time in the benefit of the members, knowledge sharing, I'm starting my communication, and then once he'll join, we'll start our inaugural session. So at the outset, I'd like to welcome you all on another exciting program of this year at WRC, jointly with Borivali Central CPE Study Circle, Masterclass on GST. Friends, while discussing with the Vimal Jain sir, Jatin Harjai ji, they were having lot of insight for the GST part which is going on in a recent scenario, and that is why we have decided to host this program in the month of July, where they can guide for all the update which is very, very important for our profession. And they are traveling from Nagpur, someone is traveling from Bhuleshwar. So these are the important program which should be attended by all our members, and that is why we moved from our regular premises BKC to Borivali. So I just want to say that this year we are targeting to have more and more knowledge sharing at WRC. Recently we had program on AIF and family offices also. Recently we have covered GCC program also at Geo Convention Center. And believe me, the way the knowledge sharing is going on, it is really good for in terms of empowerment to our members and acceleration to our profession, in which we are targeting 360-degree grooming for all our members. And very recently, we have already announced our national conference also, that is on internal audit. On 10th and 11th July, we are hosting the national conference at BKC ICI Bhavan, and that will be covered all the areas related to internal audit, and which is specifically we are doing with the IICA. Friends, during last, today is my 131 day of chairmanship. I am counting my days in terms of delivery. And in last 131 days, I want to share with you that we have already delivered more than 120 programs for the benefit of all our members. And in this 120 programs, I can say more than 30 programs were held first time in WRC on such topics we have planned. And the kind of experience our members is getting is really phenomenal. When we were doing program on AIF, more than 100 representative of AIF were there, because we believe that stakeholders should be there. Whenever we are doing networking, CA to CA networking is one of the point, but if we are targeting to have some representative from particular domain, then at least they should be there to understand our roles, our responsibility, and effective networking can be flourished on that side. And that is why having 30 plus innovative program is really a history in WRC, and we are targeting more. And first time, well in advance, we have come out with our regional conference date also, because in last year we received some feedback that we have launched on a last note and like that. So this year we are targeting that we should give opportunity to all our members to be the part of the signature program of WRC, that is the regional conference. And believe me, we have already received more than 200 registration in just 15 days of after launching. On 4th and 5th December at Geo Convention Center, again a larger landscape, we are hosting our regional conference, in which we are inviting more than 100 speakers, and we are targeting at least 2,500 members presence, and it will be a very intuitive experience for all our members in terms of knowledge sharing. Friends, this year we have targeted the 6 fundamental principle, I can say, which is need of the hour, which should be shared amongst the members. One is innovation, that I have already highlighted, and that is the start of impact, which we want to create for long lasting period. Then another is mindset. So we are driving an impact in terms of changing the mindset, so that our members can be beneficial of having more consultancy and value addition services. What we are targeting, those are only focusing on the compliance part. We are striving some programs through which they can gain something, and they can shift from
compliance to consultancy, which is need of the hour. Because in the era of automation and technology, I can say all the compliance will be automized very soon. Those are still pending, and some of the compliances is already automized. So we have to understand our role and we have to shift our working accordingly. So in the M, which is mindset, we are trying to change the mindset of all our members. In each and every program, we are targeting that we should have some value creation. Then P stand for professional excellence. Friends, we are part of ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, and we have to understand our responsibility accordingly. Today, whenever we are signing any balance sheet, there is a trust from the stakeholders. Today, if any company is going for IPO, they have to submit their financial, which is signed by us. Means we are the principal stakeholder in terms of trust, and which we have to maintain. And that is why professional excellence in our area is really important, and that is why we are hosting so many training programs. Recently, we had workshop on the valuation and business modeling. We had peer review program also. So over there, we can definitely adhere to quality more, and in terms of deliverable, if quality is very efficient, then definitely we can be the stakeholders' confidence, which is need of this profession. And then friends, A stand for adaptability. Again, if I ask everybody that how many of you were using AI tools before 2 years, probably 90% of chartered accountants were not using. But today, if I ask you that how many of you are using, 90% of chartered accountants are using some of one or two tools related to AI in their offices. And that is the beauty of our profession, that we are always adaptable. And I am very happy to highlight that our mother body, that is Institute of Chartered Accountant of India, is already trained more than 52,000 chartered accountant in AI space, and it is really a big number. Today, all our overseas chapter is also demanding the same curriculum. Recently, I received call from Vice Chairman of Malaysia chapter that he want to attend the AI course in Mumbai. Some of the other friends are also trying. So this is the beauty of our curriculum, that how we are training, how we are providing updates to all our members in AI space. And believe me friends, 800 batch, the batch number 800, we are hosting from 6th, you can say from tomorrow at BKC only. So having 800 batch, having capacity of 60 people is really a big thing for us, and that is why we are saying that we are providing very efficient update in terms of AI, and that is the adaptability approach which we should have. In terms of collaboration, which is really big need of the hour. Why I am saying? Because today if I am representing the largest regional council, it is just because of some collaboration which I had for my professional life. Because dedicating full time to the council affairs is required lot of things in your journey also. And that is why I always say the collaboration approach is the need of the hour, where we are living in the era which is famous for the networking and connection. And we have come out with two important initiatives in this collaboration approach. One is CA Nexus. CA Nexus is an initiative which is available on WRC website in the tab of initiative, in which we are inviting data from all the smaller firms or proprietorship chartered accountants. Those are looking forward to have a partnership with larger firm. Similarly, we are inviting larger firm database also. Those are looking forward to have some partnership collaboration with smaller practicing firms, partnership firm or proprietor. And I'm very happy to say that in last 130 days of this tenure, we have received more than 100 applications in this CA Nexus, and very soon we will organize a physical program in which we will invite all the applicants. Those are looking forward to have collaboration, so they can have interface between amongst each other, and they can be open up for the partnership, which is again very, very important need of the hour, and it is aligned with the country leadership also. When Honorable Prime Minister Narendra Modi ji said that we should have more big firms from India, then our role came into picture, and that is why we have come out with a very unique initiative, that is CA Nexus. My request to each one of you, those are really looking forward to have some partnership collaboration, they can definitely mention their details, and very soon we will announce our physical program. Then one more collaborative approach which we are trying this year at the best is WRC Corporate Setu. In recent, we have done some program which is very, very important for the members in industry, and
we are inviting all the industry, those are looking forward to have effective knowledge sharing, and those want to create their footprint at WRC and ICI. So WRC Corporate Setu is a platform where we are solving a problem. In general, we have an impression that our members in industry and businesses are least connected with us. And believe me friends, if our 75% of population are working in the industry, if they are not connected, then how our profession will be on a purposeful manner. So definitely that is why we have come out with a very unique initiative, and I received recently the application from Kotak Bank that they want to host one program under the banner of WRC for their chartered accountant. Similarly, we are approaching to all the corporates for their chartered accountant, and we are designing customized program in which we are taking care of how decision biases can be managed, AI, then there is a branding, presentation, all such type of program we are keeping. So this is again a very important initiative of WRC. And friends, T stand for transformation. In impact, the last one is transformation. Why we are saying that transformation? Because if you feel that our profession is also going through with the transformation and we have to update ourselves, then it is again very, very important. We are standing today at the 4 trillion US dollar economy size, and our country is aiming for 35 trillion US dollar economy size. And believe me, wherever we are going, we are having positive thought process for the India now. And in this journey of 4 trillion to 35 trillion, if any profession will be benefited, then chartered accountancy will be the highest beneficial profession amongst all other. Because whenever the size of economy is increasing, then our role, our opportunities, and our way of working is also changing very fast. And recently, I want to highlight, when we were having our international study tour at Japan, we were having interaction with the Japanese stakeholder. One thing they said me that we might be a developed country, but now we are looking upon the India. There are two reasons. One is whenever we are looking for a trusted partners for setting up a unit or having some business hub and like that, then the chartered accountant from India, which is first came into our mind in terms of trusted partners, and we believe that they are really efficient to provide all the services. Then another one is that India is having highest young population amongst the world. In Japan, normal age of working is 59, but here our normal age of working, average age of working is 29 years, and we have the highest young population, which is most important pillar for any economy, and that is why they are looking upon us. And then that is why I generally say that हमने जमी पे घर बनाया, हम जन्नत में रहते हैं. हमने जमी पे घर बनाया, हम जन्नत में रहते हैं. हम बड़े खुश नसीब है कि हम भारत में रहते हैं, भारत में रहते हैं. And that way, definitely, we being the perfect profession which is serving to the nation, we can take participation in this growth journey of our country. And that is why we are inviting all our chartered accountants to transform. Friends, when we are talking about the financial market, we have come out a very unique initiative, that is Market on Monday. Every Monday, we are discussing virtually with the expert of the market for 1 hour and 1.5 hours that how market is going on and how a chartered accountant can be the participation in terms of opportunity, and both the opportunity, investment opportunity as well as consultancy opportunity. And that is why Market on Monday is a really a signature series which we have launched. Until now, more than 10,000 chartered accountant is already participated in this Market on Monday series, and definitely every Monday from 5 to 6 p.m. we are targeting to have update from the financial market, which is very, very important, because I personally believe the kind of opportunities which we have in audit, taxation, the similar kind of opportunity, similar quantum of opportunity is available in capital market and financial market. Because we have to see the statistics also. In last 3 years, the number of AIF, Alternative Investment Fund, is doubled. Earlier we were having only 500 to 600 AIF registered with SEBI. Now we have more than 1700 AIF registered with the SEBI. And once a AIF is registered, there are requirement of minimum 4 entities. And in 4 entities, more than 12 services is required from chartered accountant. So again, a great opportunity for the chartered accountants, those want to flourish in financial market. They can be in the part of AIF services.
because it is very, very specific. And I want to say that very few chartered accountants are doing such type of work, very few. And it is taken care by of legal firms, but definitely a chartered accountant can also take participation in the AIF management services, which is growing very fast. In last 3 years, more than 1700 AIF is registered with SEBI. Then we have to understand IPO participation also. In 2025, highest ever IPO got listed in the India. More than 350 IPO on MSME and main board listed in the country. And once a IPO got listed, I can tell you, my friends, that you have a great opportunity in terms of professional services as well as investment also. Because if your client is going for IPO, if you have some strategic role also, then investment opportunity can be cracked in terms of having great future. And for professional services, there are more than 6 to 7 services which is required in the process, from signing the mandate to ringing a bell at the exchange. There are more than 6 services which is required from chartered accountant only. And I can say that is why the market on Monday series is really important. Please have a look on that. And then another exciting series which we launch on Sunday, almost every Sunday or alternative Sunday, we are doing some important discussion which is related to giving back to society. Because we being the chartered accountant, we might have wonderful experience in our life, but this is the planet which gave us lot of things, and in the current scenario where lot of disruption is happening, we have to understand our role in terms of giving back to society. And that is why Sustainable Sunday series is really important, in which recently we had a session on carbon credit. This is again one area where there are some companies, those have already crossed more than 100 crore turnover. They are providing carbon credit to the companies, those are looking forward to set up in overseas, because there are some countries where carbon surplus is the mandatory requirement. And we have so many companies where surplus is available. So again, we have discussed that how carbon credit accounting and the bookkeeping can be done in this wonderful series. We are doing some physical program also, as in recent we have celebrated CA Day, where we have targeted for the blood donation, cleaning of sea, and like such activities, which can be definitely a part of giving back to society. And I'm very happy to say that in recent we have celebrated CA Day in Borivali only, in the K Divine, with the participation of more than 1200 members. Ravi Bhai and all were there, and first time ever at WRC, more than 1000 members were singing together Hanuman Chalisa, Shiv Tandav. So it is really a great experience of having such a wonderful CA Day celebration on 78th Foundation Day. Friends, I'm playing a very important role in the year which is known as 75th year at WRC. So we are celebrating the Platinum Jubilee at the WRC, and we must have a big round of applause for all the past chairmen, past council members, and past presidents, those who have contributed for such a great legacy, because wherever we are going, the flag of WRC is really high. They are saying that the kind of quantum of working, the effective planning and implementation for the benefit of members we are doing is really appreciable. And we are receiving from last 30 years the best regional council award also. So this is really a big moment for all of us, that I am representing as a 75th chairman of WRC, and we are targeting 75 new initiatives which we have come out on 1st July. And in each initiative, we will definitely seek your participation at the best in the 75 year of celebration. Then friends, coming back to one of the exciting scenario, that is Niryat series, WRC Niryat series. We are in the era where geographic barrier is no more. If you are sitting in Mumbai, if you are sitting in is also, now in the current scenario, we can offer our services to overseas partners. And believe me, the kind of structure our institute is having, we are having more than 48 countries presence in our current scenario.
So where also we can do lot of things in terms of offering our services to overseas chapter. I welcome CA Vimal Jain sir. Let's have a big round of applause for him. Friends, there are so many initiatives which we have taken at WRC, and I just want to summarize with two lines that you तन्हा न बैठ हाथों की लकीर अपनी, यू तन्हा बैठ कर ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे तकदीर अपनी, लिख दे तकदीर अपनी. With these lines, looking forward for your participation in all the programs at WRC which I have highlighted. This is Internal Audit National Conference which we are doing at 10th and 11th July 2026 at ICI BKC. Then Women Residential Refresher Course again we are hosting at Jaipur. And this is one of the program which I want to highlight at Vimal Jain sir is also here, that is GST Art. This is 3 days certification course which is designed by our institute, and the kind of representation we are getting in this is really important. Representation and tribunal practice level 1. This is really important, friends. Those are practicing in GST and those are looking forward to have a tribunal practices, please join. Then I was highlighting some of the program which is specifically we are designing for the modern CAs, that is beyond numbers, strategic skills for the modern CAs. First ever we have invited 4 experts, those are doctor in the particular space. They are guiding that how we can have networking and branding in the AI era. Then mastering cognizance in biases in professional decision making. NLP, again neuro-linguist process, which is very important to manage our mental space. Then this is the signature event where definitely we are looking forward for having more and more presence. This is Divya Drashti, that is 40th regional conference in which we are going to share about Vidya, vision and values for the benefit of our members. Well in advance we are giving this opportunity to get registered. With these, thank you so much. Now we have presence of our inaugural speaker, I can say, and to whom we are always feel positive and we are always learning the important aspect of GST CA Vimal Jain sir. I request Bishan Shah and Rikin Patel, the Vice Chairperson and Secretary of WRC, to escort him on dais, and requesting Bishan Bhai to take charge. Thank you very much, Chairman sir. And as we all are practicing in GST, we are experiencing network loss. When we just want to file a GST appeal, it's not possible due to the glitches of the GSTN, and that's what today had happened as well with the weather and everything. So thank you very much, sir. Now I request our chairman, sir. I request now chairman, sir, along with our inaugural speaker, CA Bimal Jain, sir, Vice Chairman Rikin Patel ji, and convener of the CP Study Circle to come for lighting of lamp. Thank you. And all conveners, dignitaries, please join for the lighting of lamp. I say motto.
moving forward, I request everyone to rise for ICI motto. So when we just landed to Bombay and looking at the atmosphere and the aura of the city, Bimal sir said that Bishan bhai अभी ये हम आज lecture की बातें करेंगे वो भी Sunday. मैंने बोला yes sir, we need to because today we all are gathered here, though the atmosphere is wonderful, where we may think to go to Juhu Beach or somewhere, but yes, I am pretty sure that with Bimal sir's presence, you all feel awesome and the same aura, you will definitely enjoy his lecture. And now I request Vice Chairman C.A. Rikin Patel ji to give introduction of our learned speaker. Dignitaries on the days, dignitaries of the days, very good morning to everyone present here. And I have been assigned the task of introducing someone who needs no introduction. But still, I'll briefly introduce our today's faculty, CA Bimal Jain sir, who is a chartered accountant as well as a company secretary and also a legal professional with over 24 years of expertise in indirect taxation, including GST, customs, excise, service tax, VAT, FTP, DGFT matters. He is a founder of A to Z Tax Corp LLP and serves as a president of CACS CMA, Council of Chambers of Trade and Industry, that is CTI, New Delhi. Noted author and an accomplished book, GST Law and Contemporary 10th edition 2025, and a regular faculty at ICAI, ICSI, ICMAI. He is widely recognized as a leading voice in India's indirect tax domain. Also, I think he has taken a lot of pain coming here and guiding all of us. So I think with a huge round of applause, let us welcome. And I would request everyone on the dais to present a token of appreciation to our speaker, Bimal sir. Back to you, Bishan bhai. Yes, sir. It is said that by Chanakya, apadam, apadam, apad, apad, cha prapti nam, cha vicharanam. अगर आपको difficulties है, there is a vigna, then you definitely think something more, and that is what has been said by Chanakya. Even in GST also, we are thinking that only, that ki kahan complexity hai and how we can play our role as the chartered accountant. I am pretty sure that with your wonderful deliberation, we all have an opportunities to be knocking our doors to solve the issues. So over to you, sir. I request everyone to give big round of applause to our learned faculty, C.A. Bimal Jain, sir.
At the outset, let me thank Chairman Saurabh Bhai, WIRC, Bisan Bhai, Rinkin Bhai, Sikandar ji ऊपर बैठे हुए थे, and senior members, ladies and gentlemen, good morning. देखिए मैंने तो बहुत लो वॉइस पे कहा, और हम लो नहीं रहेंगे. गुड मॉर्निंग. बरसात हो रही है, मैं दिल्ली से आया हूँ. लास्ट 4 days आई एम ट्रैवलिंग. भुवनेश्वर किया, भुवनेश्वर के बाद सेगांव किया. सौरभ भाई का क्या पता नहीं क्या चक्कर है, सेगांव करना तो मुंबई भी आ जाओ, मुंबई भी एक प्रोग्राम करेंगे. यहाँ बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है. घर पे होता तो बहुत मजा आता. हम लोग दिल्ली में वेट कर रहे हैं, बारिश आ जाए, बारिश आ जाए. आप लोग 5 दिन से बारिश का मजा ले रहे हैं. संडे के दिन तो मजा आता है, वर्किंग डे में मजा नहीं आता. बट नेवरदलेस, जीएसटी सच ए वास्ट टॉपिक. आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, यू विल फाइंड डाइवर्जेंट ओपिनियन, डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट वे टू लुक एट द प्रोविजन. आई एम श्योर आप सब जीएसटी करते हैं, क्योंकि जीएसटी का ही फुल डे है, तो आप लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जीएसटी में ही हैं. तो कुछ एंजॉय करेंगे. सिंपल टॉपिक करके फ़ायदा नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक करेंगे. और बिशन भाई मुझसे कह रहे थे, विमल जी आप लोगों को ये बताइएगा कि जीएसटी में लिटिगेशन करने के लिए हमारे अंदर क्या स्किल सेट होना चाहिए. बिशन भाई, एम आई राइट? तो बिशन भाई चाहते हैं कि मैं अपने सारे स्किल सेट आपको दे दूं और फिर आपसे ओपिनियन लेने के लिए आऊं. चिंता मत कीजिए, इस क्रेडेंशियल इसको क्रिएट करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है. एंड बिल्ड के लिए आपको थोड़ा सा फुट स्टेप भी फॉलो करने पड़ते हैं कि अच्छा ये बंदा इस प्रोविजन को ऐसे क्यों देख रहा है, इसको देखने का तरीका डिफरेंट भी तो हो सकता है. और वाकई ही होता है. आप विश्वास मानिए, सुप्रीम कोर्ट तक कई बार जजमेंट ट्रेवल करके आते हैं और आपको ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया क्यों, जाने का तो था ही नहीं. बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं, हमारे जैसे कई सीनियर एडवोकेट हैं, क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, बेंच क्या सुन रही है, और ऑर्डर क्या आ रहा है और क्या होना चाहिए. वास्ट डिफरेंस. तो मुझे नहीं मालूम, पिछली बार आप लोग थे क्या कांदीवली में जो प्रोग्राम हुआ था? हाउ मेनी ऑफ यू? एक बार हाथ उठाए. सो 10-12 लोग थे. बोरीवली को प्यार नहीं है मेरे से, इसलिए बोरीवली आई नहीं थी उस दिन. सौरभ भाई ने क्या इंतजाम किया, बोले नहीं नहीं बोरीवली रेसिडेंशियल है सर, वहीं चलते, उनके घर पे ही चलते हैं. आजकल पढ़ाने का भी तरीका है कि कुआं खुद चल के आ रहा है, बोले ले लो ले लो ले लो. नहीं, आई अंडरस्टैंड, वर्किंग डे या वेरी हेवी डे हमारे लिए भी होता है, इसीलिए हम सैटरडे संडे को ही टाइम निकाल पाते हैं. सो वी मस्ट एंजॉय. आप कोई पीपीटी मत देखिए, कोई प्रोविजन मत पढ़िए, इतना पानी पड़ रहा है, मजा कीजिए बस. आज बस थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ मैं आपसे बोलूँ मुझे सुन लीजिए तो सुन लीजिएगा, और 1-1.5 घंटे तक थोड़ा सा मोबाइल को कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा 1-1.5 घंटे मोबाइल यूज नहीं करेंगे अपन, जिससे क्या कनेक्टिविटी जुड़ेगी. और विश्वास मानिए आपको बहुत मजा आएगा. वैसे बोरीवली सीपी स्टडी सर्किल है, अगर आपको मजा नहीं आया ना, आज का पैसा वापस. मैं नहीं दूंगा, सिकंदर भाई देंगे क्या? वो सिकंदर भाई ने एक बार में ले लिया है. चलिए, नेवरदलेस, मैं आपसे ये कह रहा था कि लॉ को पढ़ने का तरीका और देखने का तरीका, इंटरप्रेट करने का तरीका सिर्फ आपका नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इतने नाटक मैं देख रहा हूँ जहाँ पे इंटरप्रिटेशन पे चीज़ें ट्रैवल करती हैं. और जब आप लिटिगेशन की बात करते हैं तो बड़े इंटरेस्टिंगली आपको प्रोविजन को पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा. एंड जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन डिफरेंट दिखेंगे. तो सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, मैं कांदीवली में करके गया था, लेकिन 10-11 लोग हैं तो मेरे साथ बियर कर लीजिएगा. और जिन जिन ने हाथ उठाया था ना कि हाँ सुना था, उनसे ही क्वेश्चन पूछूंगा. पहले से बोल दिया सरेंडर, अब तो याद नहीं है, अब छोड़ दो मेरे को. चलिए ठीक है, आज
जो आपको समझ में आए आप कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आई एम सॉरी अबाउट लेट हो गए हम लोग। आप लोग टाइम से, पूरा टाइम से तो नहीं आए थे, पूरा टाइम से आ गए थे 10 बजे पे। ओहो, तो माफी मांगना बनता है बिशन भाई, हम माफी मांग लेते हैं आपसे। Believe me, it was raining in the morning. We took a flight 7 o'clock from Aurangabad. It was hectic day yesterday, Segaon. 5 बजे जगे, भाग भाग के। आप लोग का प्यार ही है इस वजह से। So let's start with the very first topic and I'm sure you must be enjoying it. Safari retreat का judgment we all know about it, right? But अब मैं आपको आज different perspective में सफारी retreat सुनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, बट क्या जरूरी था? आई विल डिस्कस ऑल दिस पार्ट। सफारी रिट्रीट में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली ड्रॉ हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, whether GST credit is my vested credit. So आप फ्रीली जो आपके मन में आए आंसर कीजिएगा एंड लेट्स एंजॉय द इंटरेक्शन बोथ वे, जिससे आपको लगे कि हाँ हम एंजॉय करने आए हैं। जीएसटी क्रेडिट मेरी वेस्टेड क्रेडिट है। कितने लोग मानते हैं? हाँ वाले हाथ उठाइए, और ना वाले? अच्छा, जो नहीं, जो ऐसे बैठे हैं, एक और पार्टी आ गई है, कॉकरोच जनता पार्टी। सर हाथ खोलिए, संडे का दिन है, एंजॉय कीजिए। देखिए एक चीज मैं बताऊं, पढ़ने वाली पाठशाला में कभी भी ना ऐसे नहीं बैठना चाहिए, आइदर यस और नो। फायदा क्या है मालूम है? जब आप मान लीजिए कोई आंसर देते हैं अपने माइंडसेट से और वो गलत होता है या सही होता है, इट रजिस्टर टू योर माइंड। लेकिन आप आंसर ही नहीं दे रहे, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो मजा नहीं आएगा। तो मजा आपको, मैं दिख नहीं रहा, मैं आपके पास भी आ जाया करूंगा, तो मजा नहीं आएगा। तो आपको आंसर देना है। तो इसके बाद नो मोर कॉकरोच जनता पार्टी, आइदर यस और नो। GST credit is not my vested right unless you satisfy the condition. If you satisfy the condition, then it becomes vested right. Maybe with due regards and respect, he is not agreeing with me. उन्हें पहले ही मेरे को गुगली डाला, बोले मैं तो एग्री नहीं करता। आप एग्री करें ना करें, but that is what the safari retreat, Supreme Court judgment. So maybe अब हम आपको एज ए जजेस देखेंगे बेंच पे। एंड दे द बैकग्राउंड ऑल्सो। आपको याद है फिल्को ट्रेड सेंटर ट्रांजिशनल क्रेडिट टू बी टेकन इनटू जीएसटी रेजिम, आर यू रिकॉलिंग? वहां पे टाइम लिमिट थी क्रेडिट को ट्रांजिशन करने की, राइट? लेकिन ये लोग बार बार कुछ ना कुछ नए नए कंडीशन डाल देते थे, इस टाइम पे लो, इस फॉर्म में लो, इस तरीके से लो, राइट? मैटर वेंट अप टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सेड ये क्रेडिट उनने प्री जीएसटी में ले ली थी, अवेल कर ली थी, बिकॉज दे सैटिस्फाई द कंडीशन, सो इट बिकम्स वेस्टेड क्रेडिट। आप नया नया कंडीशन क्या डाल रहे हो उनके लिए? वंस जब क्रेडिट प्री जीएसटी में लेना था तो उन्हें ले ली थी, कंडीशन सैटिस्फाई की, उसी क्रेडिट को ट्रांजिशन कर रहे हैं। व्हाई न्यू कंडीशन? एंड दैट इज द रीजन सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन एक्सटेंडेड टाइम लिमिट, 2020 तक ट्रेवल कर गई थी। सो जीएसटी क्रेडिट इज वेस्टेड ओनली व्हेन वी सैटिस्फाई कंडीशन। अब भाई साहब ने कह दिया है कि आई डोंट एग्री, तो आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है, आपको क्रेडिट मिल जाएगा? नो, ही सेइंग then I want to hear you out. I want to hear you out. How come you're saying? Yes, please tell me. Yeah, take the mic. Mic दे रहे, वो दे रहे। For two reasons. One is the commercial reason is that whenever I make payment to the supplier, including GST, so therefore I should get the credit. That is one. First you finish. So that is one. Second is the legal position, which is section 76. In section 76 says that notwithstanding anything containing
similar law is there in the income tax side also, because income tax we had a Hindustan Coca decision, because where we used to have argument that once my TDS has been deducted, whether the deductor has deposited or not, whether I should get the credit. So that Hindustan Coca judgment of Justice Kapadia, that was in, of course, in the context of income tax. Here in the context of GST, as I mentioned, since I have made a payment once, and there cannot be a double taxation of the same subject matter, having made payment to the supplier, I cannot be asked to pay GST once more. And secondly, as I mentioned, that as per section 76, Sir, notwithstanding. Don't repeat. Right, so these are the two reasons. Be seated. Now we can agree to disagree. Sometime we can agree to disagree is what we are not with open mind of listening, understanding. He may say to me, I may say to him. Why I said in the context, he just picked up one example of supplier not depositing the tax. Department is disputing such credit in the hands of buyer. Right? 16(2)(c). This is one of the example. And I will come back to that example later with the judgment from the High Court. So मैं आपकी बात मानूं या High Court या Supreme Court की मानूं, I'm leaving it, we can agree to disagree, but I'm totally disagreeing with him. My view is, it is vested credit only when we satisfy. मुझे क्या चाहिए वो बात अलग है. Coming to BKC footsteps. Inverted duty structure. Inverted duty structure में क्या है कि मेरा रॉ मटेरियल 18 पे आ रहा है और आउटपुट 5 पे जा रहा है, राइट? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में और दो कंपोनेंट भी हैं जो हमारे यहाँ एक्यूमुलेशन क्रिएट करते हैं, इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स. वीकेसी फुटस्टेप गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट, वहां पे उनने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कहा तुमको इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों का रिफंड मिल जाएगा. आर यू रिकॉलिंग? मद्रास हाई कोर्ट सेज नो वे, ओनली इनपुट. कैपिटल गुड्स को देने की बात तो मुझे क्या चाहिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नेवरदलेस गो टू सुप्रीम कोर्ट. दोनों मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो वे, 54 सबसेक्शन 3 आपको सिर्फ इनपुट पे रिफंड देने की बात करता है, इनपुट सर्विस पे भी रिफंड नहीं देगा आपको. कैपिटल गुड्स की तो बात ही मत कीजिए. तो पिटिशनर ने बोला माई बाप हम कहां जाएं, मेरा क्रेडिट तो इनपुट सर्विस पे भी अकोमोलेट हो रहा है, मेरा कैपिटल गुड्स पे भी हो रहा है. बोले तुमसे मुझे दर्द है, I'm having pity on you, but I can't help it. I can't help it. मैं लॉ पढ़ूंगा, लॉ में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता. तो पिटिशनर पूछा हम जाएं कहां लॉर्ड से? बोले वो एक है ना जीएसटी काउंसिल, उसके पास जाओ और लॉ को अमेंड कराओ. लॉ में अगर प्रोविजन नहीं है कि जुवेनाइल को आप ट्राई कर सकते हैं, इवन फॉर हीनियस क्राइम यू कांट, नहीं दे सकते आप उसको सजा. कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लॉ पास किया है, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, आपको लॉ को अमेंड कराना पड़ेगा. अब मेरी इच्छा है, मैंने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, जिसको मैं सब्सिक्वेंट नेक्स्ट केस स्टडी में करूंगा, बट कीपिंग टू योर माइंड, और सप्लायर ने जमा नहीं कराया. आपको चाहिए मुझे क्रेडिट मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए बात अलग है, कंडीशन. सो हम करेंगे सेकंड केस, बट मैंने पहला आंसर आपको ये दिया, जीएसटी क्रेडिट इज वेस्टेड क्रेडिट ओनली व्हेन वी satisfy condition. Yeah. I will come back to you. I got another. अरे यार मजा नहीं दूंगा तो मजा नहीं आएगा. मैं भी आऊंगा थोड़ी देर बाद. थोड़ा सा मुझे बोल लेने दे. तुमने टारगेट तो नहीं किया लेट आया इसकी क्लास लगानी है? ये टारगेट तो नहीं किया है ना? थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने दो सर, अभी तो पहला स्टार्ट ही किया है. आपकी वो सारी बातें सॉल्व करके जाऊंगा. हाँ, जहां तक हमारे अपने, मैंने कहा ना इंटरप्रिटेशन,
It may vary from one person to why I started with safari retreat. मैं आपको वहां तक लेके जाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, पर सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत थी ही नहीं। वही पढ़ाना है मुझे, वही मेरा टॉपिक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जीएसटी लॉ में सफारी रिट्रीट इंपॉर्टेंटली 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी एंड क्लॉज डी, नेगेटिव लिस्ट। आप अपने ऑफिस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन करते वक्त जो इनवर्ड सप्लाई है, इनपुट सर्विसेज, उस पे जो आपने जीएसटी क्रेडिट दिया है वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एम आई राइट? इच्छा तो है मिलनी चाहिए, पर लॉ बोलता है नहीं मिलेगी। So constitutional validity of negative list was tested in safari retreat कि ये प्रोविजन सही है क्या। वहां पे भी आर्गुमेंट यही हुआ कि आपने जो प्रियम्बल जीएसटी लॉ का बनाया था वहां पे आपने कहा था सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, तो नेगेटिव लिस्ट लॉ में क्यों लेके आ गए आप? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो वे, प्रियम्बल एक ऑब्जेक्टिव था, बट इफ they want to create some bifurcation bucket negative list, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर 17(5) क्लॉज सी एंड क्लॉज डी आपको क्रेडिट नहीं देना चाहता तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उन्हें कह दिया आपको नहीं मिलेगी। अब आप लड़ते रहिए कि नहीं मुझे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, तो कहां जाना पड़ेगा? जीएसटी काउंसिल, उनसे बोलना पड़ेगा लॉ को अमेंड करो। तो दो बातें हमारे अगेंस्ट में हुई थी। तीसरी बात के लिए हमने बहुत तालियां बजाई थी। 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी क्या था, मैं आपसे पहले बोल दूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। फिर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे जहां पे हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात कर रहे हैं, ठीक है? जब आप मॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मॉल का, तो उस पे सीमेंट, आयरन, स्टील, इनपुट सर्विसेज सब लगते हैं। क्वेश्चन ये था क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सी में क्या लिखा है और डी में क्या लिखा है पढ़ना नहीं है, मैं आपको सुनाता हूं, आप बस माइंड में रजिस्टर कीजिए। क्लॉज सी ये बोलता है कि आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पे क्रेडिट नहीं मिलेगी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। यानी प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगी, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। और उसमें एक और एक्सेप्शन डाल दिया कि अगर आपकी इनवर्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है और आउटवर्ड भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो क्रेडिट। यहां तक क्लियर है ना सर? ये प्रोविजन है, इसमें मेरा कोई से नहीं है। क्लॉज डी में उन्होंने क्या कहा? यू विल नॉट गेट क्रेडिट ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ for construction of immovable property on own account other than plant or machinery। सी में प्लांट एंड मशीनरी था और डी में प्लांट और मशीनरी। सुप्रीम कोर्ट में अब आर्ग्यू हो रहा है, एक सीनियर एडवोकेट आर्ग्यू कर रहे हैं। लॉर्डशिप देखिए ना, सी और डी सेम नहीं है। सी में एक्सक्लूजन प्लांट एंड मशीनरी का है, पर डी में अगर ये प्लांट है और मशीनरी है तो क्रेडिट मिल जाएगा। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? लॉर्डशिप ने पूछ दिया प्लांट की डिफिनीशन क्या है, बताओ प्लांट की डिफिनीशन क्या है? तो जीएसटी लॉ में प्लांट कहीं डिफाइन नहीं है। क्या डिफाइंड है? प्लांट एंड मशीनरी। तो जो सीनियर लॉयर थे उन्हें कोई इनकम टैक्स का जजमेंट, ताजमहल होटल लिमिटेड, लॉर्डशिप को रीड कराया। उसमें लिखा था प्लांट मींस मॉल, एनी अदर बिल्डिंग एक्सेप्ट होटल एंड सिनेमा थिएटर। प्लांट मींस मॉल और एनी अदर बिल्डिंग एक्सेप्ट होटल एंड सिनेमा थिएटर। देखिए लॉर्डशिप इनकम टैक्स का जजमेंट है, प्लांट मींस मॉल। जज भी कन्विंस्ड, उन्होंने कहा अच्छा
तो उन्होंने जजमेंट क्या पास किया, अगर मॉल प्लांट है एज पर फंक्शनल टेस्ट तो फिर क्रेडिट मिलेगा। यहां तक याद आ रहा है सर सबको? यहां पे हमने सबने ढोलक बजाई थी और एक क्रेडिट मिल गया, क्रेडिट मिल गया, क्रेडिट मिल गया। जब तक सीबीआईसी को मालूम पड़ा, उन्होंने बोला अरे यार ये तो हमसे रह गया था, यहां प्लांट एंड मशीनरी सी में और डी में प्लांट और मशीनरी 9 साल से उनके पास रह गया। तो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई तो ये महारथी लोग आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपने देखी होगी राइट, सब बैठ जाते हैं एफएम के साथ। तो सीबीआईसी चेयरपर्सन देन संजय अग्रवाल जी थे, अब नाउ ही इज रिटायर्ड। तो उन्होंने कहा हमसे क्लरिकल एरर हो गया है। और आर यू रिकॉलिंग, हमारा इंटेंशन तो कभी था ही नहीं कि हम आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रेडिट दें, एम आई राइट? हम तो इसको रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करेंगे। तो मुझे 2 बातें समझ में आई। मैंने कहा भैया आप भी क्लरिकल एरर करते हो, हम तो करते हैं, हमसे तो हो जाता है, आप भी करते हो क्या? और हमारे केस में सेक्शन 74, और ये महारथी लोग 9 साल से इनको लॉ का प्रोविजन समझ में नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोविजन को पढ़ के जजमेंट भी दे दिया। प्लान जीएसटी लॉ में डिफाइंड नहीं है, इनकम टैक्स का जजमेंट रिलाई किया और जीएसटी में जजमेंट। और हम सब कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन करनी कैसे? वी कैन एग्री टू डिसएग्री। फिर इनने रिट्रोस्पेक्टिवली उस प्रोविजन को अमेंड किया फ्रॉम जुलाई 1, 2017। अब डी क्या बोलता है? यू विल नॉट गेट क्रेडिट ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ on construction of immovable property on own account other than plant and machinery as retrospectively amended। यहां तक मैं आप सब मेरे साथ हैं सर? हैं? अब मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप सबके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। मेरे हिसाब से अगर मॉल के कॉन्टेक्स्ट में सारा डिस्कशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट तक, तो मुझे शायद सफारी रिट्रीट का जजमेंट चाहिए ही नहीं था। क्यों नहीं चाहिए था उसका बेसिस बता देता हूं। द पैरा 32 ऑफ सफारी रिट्रीट, पैरा 32 ऑफ सफारी रिट्रीट, एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन ओन अकाउंट। तो मैं डी फिर से पढ़ता हूं जिससे आपको अब समझ में आए। बोलता है आपको गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रेडिट नहीं मिलेगा ऑन ओन अकाउंट। पर उन्होंने कहा कि मॉल तो ऑन ओन अकाउंट कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रहा, इट इज फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू थर्ड पार्टी। आर यू गेटिंग मी? तो ये ऑन ओन अकाउंट है ही नहीं है। बस यही कह के वो पैरा 32 साइलेंट हो गया। पैरा 32 केप्ट मम। फिर वो चला गया डेफिनेशन में, प्लांट और फंक्शनल करके उसने जजमेंट दे दिया। अगर मैं पैरा 32 सफारी रिट्रीट का रिलाई करूं तो मॉल विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ कॉमर्शियल लेटिंग आउट टू थर्ड पार्टी, इट इज नॉट ऑन ओन अकाउंट। तो इस जजमेंट से पहले भी यही पोजीशन है और जजमेंट के बाद भी यही पोजीशन है। तो क्रेडिट मुझे पहले भी मिलेगा और क्रेडिट मुझे, सो इंटरप्रिटेशन बिकम सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसमें उनने जो डेफिनेशन ताजमहल होटल लिमिटेड का दिखाया, प्लांट मींस मॉल और एनी अदर बिल्डिंग एक्सेप्ट होटल। होटल ने क्या पाप किया है? सेम है ना? सो देखिए आप इंटरप्रिटेशन कितना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक और एस्पेक्ट इसके साथ ऐड करूं आपको। आप कंपनी हैं, आप कंपनी का स्टोरेज वेयरहाउस बनाना चाहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने कंस्ट्रक्शन कराया तो ओन अकाउंट, आपको क्रेडिट। बीच में बिमल जैन को रख दीजिए, बिमल जैन सारा कंस्ट्रक्शन करवाएगा एज ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बनके, और आपको लीजिंग करेगा स्टोरेज वेयरहाउस की। बिमल को भी क्रेडिट मिलेगा और आपको लीजिंग पे भी क्रेडिट। आर यू गेटिंग इट?
तो सफारी रिट्रीट हैज गॉट इट्स ओन ब्यूटी। हमने वो जजमेंट देखा, पढ़ा, इंटरप्रिटेशन किया, लेकिन हमने इस लेवल तक आके डिस्कशन कभी नहीं किया। तो मेरे से किसी ने ओपिनियन मांगा था सफारी रिट्रीट आने के बाद, आई सेड तुमको क्रेडिट मिलेगा। मैंने टैक्स प्लानिंग भी आपको दे दी, आप कंपनी है, स्टोरेज वेयर हाउस बनाते हैं, आप खुद अपने अकाउंट पे मत बनाइए, बीच में थर्ड पार्टी। अब इसको एक स्टेप आगे और लेके जाते हैं। सर महाकुंभ में कौन कौन नहाने गया था यहां से? ओ इतने सारे प्राणी मोक्ष जाएंगे भैया, जो जो नहीं गया वो इनको छू ले, यानी हम इनके बहाने मोक्ष चले जाएंगे। See, movable versus immovable is the important discussion when we look at 17(5)(c) and clause D. Immovable है या movable है? अच्छा, एक बिल्डिंग के ऊपर आपने एक सिविल स्ट्रक्चर बनाया और सिविल स्ट्रक्चर पे आपने टेलीकम्युनिकेशन टावर लगा दिया स्क्रू के साथ। इसे मूवेबल और इमूवेबल? कोई इमूवेबल बोलने वाला नहीं है? इमूवेबल हाँ, स्क्रू खोल के लेके जाएगा, राइट? पर दो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट दिए। एक बोलता है मूवेबल, एक बोलता है मैटर वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट। भारती एयरटेल इन प्री जीएसटी रिजीम, वहां पे यही आर्गुमेंट हुआ जो आप आर्गुमेंट अभी आपने किया। उसने कहा कि सर वो सिविल स्ट्रक्चर में सिर्फ स्क्रू करते हैं, जब मन होगा खोलेंगे लेके जाएंगे, इट्स ऑल मूवेबल। अगर मूवेबल है तो ये इमूवेबल का जो रेस्ट्रिक्शन है दैट इज नॉट एप्लीकेबल प्री जीएसटी बट aptly applicable for GST regime also. Are you all getting it? महाकुंभ की बात मैंने क्यों उठाई थी इतने आप लोगों से, आप लोगों ने हाथ भी उठाया तो आपकी एप्रिसिएशन। महाकुंभ के जो सीईओ थे IAS, उनने मेरे को एक सो कॉज नोटिस भेजी थी। बोले बिमल जी ये GST डिपार्टमेंट ने एक सो कॉज नोटिस दिया है हमको। मैंने बोला आपको किस बात का दे दिया है हमने? बोले सर वो हम लोग टेंट बनाते हैं ना, टेंट प्री फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर का, उसमें स्क्रू से हम टाइट कर देते हैं और वहाँ चार्जेस होते थे, एसी वाला लेंगे तो ये प्राइस, ये वाला लेंगे तो ये प्राइस, 1000 रुपए तक का एग्जेम्पशन है, उसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं है, GST लगेगा। तो डिपार्टमेंट बोलता तेरा ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जब मेरे पास ये मैटर आया तो मैंने पूछा सर आप ही के तो भाई लोग बैठे हैं उधर में, उनको समझाइए थोड़ा बहुत कि यार मूवेबल है, ये इधर लगा रहेगा क्या? पूरा नदी खाली हो गया है उधर में, सब मूवेबल है। स्टिल दे हैव इशूड ए सो कॉज नोटिस एंड टू वन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू अनदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हमारी और उनकी तो बात ही अलग है, पर मैं विद इन गवर्नमेंट। तो मैं पूछा सर ये नोटिस किस लिए भेजा है आपने मेरे को? सर एक ओपिनियन दे दो, भारती एयरटेल के पहले आया था, एक ओपिनियन दे दो मैं हमको। मैं सर आप मेरे पास ही क्यों आए हैं? बंबई में भी बहुत है बड़े बड़े, आप बॉम्बे से ले लेते। नहीं नहीं सर मुझे आप अच्छे लगते हैं, उनकी लाइकिंग में मैं होऊंगा। तो मैंने ठीक है सर मैं ओपिनियन। उन्होंने फोन पे पूछा सर क्रेडिट मिल जाएगा ना? मैंने कहा बिंदास लीजिए और मैं ओपिनियन देता हूं आपको, इट्स ऑल मूवेबल, क्रेडिट मिलेगा मिलेगा आपको। तो कई बार फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन में भी अगर आप, आजकल ना इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गया है। हम सिविल स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना चाहते, हमको जगह भी बहुत दिन के लिए नहीं मिलती। अगर हम प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं और सब्सिक्वेंटली इट कैन बी रिमूव, वी कैन आर्ग्यू इट इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। योर फैक्ट विल ड्राइव बेनिफिट टू यू। सो आई गिव एन ओपिनियन के क्रेडिट में कोई बात नहीं है, यू विल गेट द क्रेडिट। एंड एट द एंड आई से सर, उन्होंने कहा बिमल जी आप आ जाइए यहाँ भी, आप भी नहा के जाइएगा। ये सब नहा के आए थे, सारा पाप वहीं धो के आए थे, हम तो छुएंगे इनको आज। मुझसे भी उनने कहा था, तो मैंने उनसे कहा बिशन भाई, मैंने उनसे कहा कि सर मुझे मत नहलाइए, हम तो नहा रहे हैं रोज, GST डिपार्टमेंट रोज नहलाता है हमको। एक काम कीजिए उस कमिश्नर साहब को जरूर नहलवाइएगा,
जो सो कॉज नोटिस दे रहे हैं आपको. एंड बिलीव मी, आफ्टर दैट वी गॉट भारती एयरटेल, which is clearly saying what is movable and what is immovable. So मैंने सफारी रिट्रीट आपके सामने क्लैरिटी के साथ करने की कोशिश की, जिससे आपको फूड फॉर थॉट मिल जाए. हाँ सर. पर्सनल, हाँ, दैट इज मीन्स ऑन ओन अकाउंट. अब किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, वो आपके लिए बनाया, इट इज फॉर थर्ड पार्टी. That is para 32, आप नोट कर लीजिए. That para you can read later in Safari Retreat Judgment only. मैं कहीं बाहर से, it is not saying on own use. यहाँ क्या हुआ, मॉल आपने कंस्ट्रक्ट करवाया अपने यूज के लिए नहीं, for the usage by third party. That is the context they have drawn. What is the meaning of on own account? सर लॉ में है, जजमेंट में है, मैंने सिर्फ इंटरप्रेट किया है. आर यू ऑल हैप्पी अबाउट इट? नहीं, वहां पे एक डिफरेंस है कि पोर्ट आपने खुद अपने लिए बनाया एंड देन यू आर यूजिंग दैट पोर्ट. फैक्ट्री मैंने अपने लिए बनाई और फैक्ट्री में मैं मैन्युफैक्चरिंग यूज कर रहा हूं. सेम एग्जांपल, राइट? लेकिन फैक्ट्री मैंने लीजिंग पे ली. हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट बदलने पड़ेंगे आपको. यू आर गेटिंग मी? हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, बढ़े? अच्छा, एक हमारी सर, ओके, पक्का ना? स्माइलिंग फेस से मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है, वरना मुझे लगता है पता नहीं यहाँ भी कुछ. हमें एक साथ चीजों को समझना है और आगे. सी आई सेड, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं ना, आज हम बेसिक टॉपिक नहीं कर रहे हैं. आज हम टॉपिक कर रहे हैं जिसमें जूस है. थोड़ा इंटरनली आपको अपने आप को डालना पड़ेगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक इट टू योर लेवल. कई बार होगा यार, कभी इस कॉन्टेक्स्ट पे तो सोचा ही नहीं हमने, जो ये कह रहा है. तो वो सोचने के लिए तो आज मैं आया हूं आपके पास कि आप सोचना स्टार्ट कीजिए, फिर हम है ना कनेक्ट करेंगे. नेक्स्ट टाइम सौरभ भाई बुलाएंगे तो आके कनेक्ट करेंगे हम लोग. मैं नहीं देना चाहूंगा. Coming to the second topic of the day, which is burning topic Pan India. कल भी हमने डिस्कस किया था सेगांव में. आज सर ने वो पॉइंट उठाया था वेस्टेड क्रेडिट पे, तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आप उसको भी सुनिए. मैं आपका सप्लायर हूं और आप सब मेरे बायर हैं. आई सप्लाइड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, चार्ज IGST, और आप सब जेन्युइन एंड ऑनेस्ट बायर हैं. आपने मुझे पेमेंट कर दिया, पर मैंने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया. क्वेश्चन ये है, आपको क्रेडिट मिलेगा या? हम चाहते तो है हमको क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि आपने तो सप्लायर को दे दिया है, सप्लायर ने जमा नहीं कराया. आपका कॉन्टेक्स्ट भी बहुत क्लियर है कि सप्लायर भी रजिस्टर्ड है और सप्लायर ने जमा नहीं कराया, तो आप सप्लायर को पकड़ो. पर लॉ वाइज हमको देखना है 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C बोलता क्या है. हमारे 4 कंडीशन से स्टार्ट हुई थी क्रेडिट लेना. पहला, आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए. दूसरा, आपने रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किए हों. तीसरा, आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया हो. आपने सप्लायर को नहीं दिया तो वो आपके केस में आ जाएगा रिसिपिएंट फेल्स टू पे विद इन 180 डेज, राइट? लेकिन यहां अगर आपके सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया तो ये बोलता है हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे. चौथा कंडीशन, रेगुलरली फाइलिंग GST रिटर्न, राइट? अच्छा, ये कौन रेगुलरली फाइल कर रहा हो, सप्लायर या बायर? मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ रहा हूं. अच्छा, हम लोग 2 वॉइसेस सुन रहे हैं, राइट? थोड़ा सा वोटिंग कर लूं. एंड विथ नो कॉकरोच जनता पार्टी. कितने लोग मानते हैं सप्लायर ने रिटर्न फाइल किया हो, ये प्रोविजन है? सप्लायर वाले हाथ उठाइए.
और कितने मानते हैं रिसिपिएंट? सर इसके बाद भी हैं कुछ लोग, सर कोई गुस्सा गुस्सी तो नहीं है मेरे से? इधर वाले नहीं है ना, पीछे से हाँ, नहीं है ना? आप जीएसटी करते हो? टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, कितने सुंदर लग रहे हो आप, करते हो जीएसटी? ये सप्लायर के लिए, रिसिपिएंट के लिए है? सप्लायर के लिए। अच्छा, बोथ के लिए कौन है कि दोनों फाइल करते हो? अच्छा, आप अकेले, 2-3? Provision is saying recipient filing return under section 39 which is GSTR 3B. अब ये कॉम्प्लायंस वाला प्रोविजन था, इसमें कोई लिटिगेशन नहीं था, बट स्टिल 9 इयर्स हो गए, हमको ये नहीं मालूम है कि कंडीशन में सप्लायर की बात कर रहा है या रिसिपिएंट की बात कर रहा है। ठीक है ना, पक्का ना? वो कई बार बड़े बड़े जो होते हैं उनको पकड़ने का मन भी करता है कि कैसे पकड़ना है इन लोगों को। तो 4 कंडीशन में क्लॉज सी पैन इंडिया बर्निंग टॉपिक, जिसपे सर ने कहा मेरी वेस्टेड क्रेडिट है। मैटर केम अप बिफोर गुजरात हाई कोर्ट रिसेंटली इन मारुति इंटरप्राइजेज। मारुति इंटरप्राइजेज में यही क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी। सप्लायर ने जमा नहीं किया, तुम मेरी क्रेडिट को कैसे रोक सकता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। पर गुजरात हाई कोर्ट ने कहा बॉस, अगर सप्लायर टैक्स जमा नहीं देगा तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। आप क्रिएट कीजिए अपने कि यार ऐसे सर कैसे हैं, आगे आइए सर, आप पीछे तो ही बैठेंगे, आप हमारे WIRC के ऐसे कैसे कैसे, सौरभ भाई बैठाओ। अब ये कॉन्टेक्स्ट कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंपॉर्टेंट है, अब आपको समझना पड़ेगा, और मैं आपको आज फूड फॉर थॉट देके जाऊंगा। बाय द वे, आप लोग बताइए, अगर ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही जाएगा 101%। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? राइट, सप्लायर ने जमा नहीं कराया, तो कितने लोग मानते हैं सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो पहले मिलेगा, कितने लोग मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा इनको मिलेगा क्रेडिट। आई विल कम बैक, अभी तो जजमेंट मांगे आपसे सर। और कितने मानते हैं सर क्रेडिट नहीं मिलेगा कुछ भी हो? चलो ना वाले ज्यादा हैं तो सुनाने का मजा ज्यादा आएगा। एक फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास ये केस मैं आर्ग्यू करने के लिए गया था, दिल्ली से उदयपुर, एंड सी हैपन टू बी, जो अपीलेट अथॉरिटी थी वो लेडी थी। दिल्ली से पूरी पढ़ाई वढ़ाई करके गया, 16(2C) पे आर्गुमेंट करना है, जो आपके माइंड में आ रहे हैं सारे आर्गुमेंट करना है। जैसे ही मैं इंटर किया, उन्होंने कहा बिमल जी कोई फायदा नहीं है, हमको तो टैक्स मिला नहीं, सप्लायर ने तो जमा नहीं किया, आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, और वो भी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, और वो भी अंडर सेक्शन 74। हमने फ्रॉड किया है। फ्रॉड, सपरेशन, विलफुल मिसस्टेटमेंट। अरे भैया, एक तो वो सप्लायर को देके बैठा है, फिर तुम कहते हो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, और उसके बाद कहते हो तुम चोर हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग। डबल इंजन सरकार है अभी हमारी, डबल इंजन समझ गए ना, सेंट्रल एंड स्टेट। सर वोट तो इसी को देते हैं, पर बिजनेस में धज्जियां उड़ी हुई, लॉट ऑफ चैलेंजेस। आई एम सेइंग पेन पार्ट, वोट में इन्हीं को देता हूं, लेकिन करो क्या? बिजनेस के नाम पे बिजनेस समझना नहीं चाहते। अरे मैं सप्लायर को दे के बैठा हुआ हूं, दोनों को रजिस्ट्रेशन देने वाला तू है, तुझे मालूम है इस सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, इस सप्लायर के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेता, और बायर से कहता है तू रिवर्स कर, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। कहां तक लॉजिकल है? पर मैंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट लॉजिक
नहीं देखता। वो क्या देखता है कि लॉ में क्या लिखा है, वरना वो बीकेसी फुटस्टेप में इनपुट सर्विस पे भी तो दे देता। दर्द है, वहां भी तो बोल रहा था दर्द है लेकिन मैं कुछ, यहां भी हो सकता है यही बोल दें कि दर्द है लेकिन मैं कुछ। तो मैं आपको ये केस जो सुनाने जा रहा हूँ, आई एम होपफुल कि ये जजमेंट हमारे फेवर में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो, लेकिन उस पर ग्राउंड क्या होंगे वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जब मैम ने कह दिया विमल जी कुछ नहीं हो सकता, तो आप सोचिए आप पहली बार किसी लड़की को देखने गए हो और वो पहली बार में दे दे थे पसंद को नहीं, थे पसंद को नहीं, तो आपके मन की दशा कैसी होगी? सेम एकदम एग्जैक्ट सर, इतना मन से पढ़ पढ़ा के आया था कि ये पूछेगी तो ये आंसर दूंगा। वो पूछने को ही तैयार नहीं, बोले दिल्ली से आया है पसंद ही को नहीं। तो मैंने मैम से कहा मैम दिल्ली से चल के आया हूँ, कम से कम एक कप चाय पिला दीजिए, और मैम एडवाइस ही दीजिएगा, ऑर्डर चाय पीते पीते 2-4 बातें आपसे करनी है, इतनी इजाज़त मुझे दे दीजिए। तो कई बार लगे ना जब वो रिजेक्ट कर ही रही है, चांस ले लो यार, तू चाय तो पी ले, कम से कम डेटिंग पे आई है कुछ तो कर ले। मुंबई कल्चर है तो होता ही है कुछ एंजॉय करने का, माने चाहे ना माने। तो मैम भी थोड़ी ठीक है दिल्ली से आया है चल दे देते हैं। चाय आई सर, फिर मैंने मैम से कहा मैम मैं 4 पॉइंट रेज करूंगा, आप एडवर्स ऑर्डर ही पास कीजिएगा मेरे अगेंस्ट में, फेवर में नहीं पास करना, पर सुन लीजिए। बोलो बोलो। उनका ये था तू बोल, इससे सुनूंगी और इधर से निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे ऑर्डर तेरे फेवर में नहीं करना। मैंने पहला आर्गुमेंट लिया, मैंने कहा और ये आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए। वो जो हम देख रहे हैं ना जजमेंट आज की डेट में जो आ रहे हैं, डाइवर्जेंट जजमेंट आ रहे हैं। त्रिपुरा हाई कोर्ट, साहिल इंटरप्राइजेस हमारे फेवर में है, गुवाहाटी हाई कोर्ट हमारे फेवर में है, बट और भी कई हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, ये अभी गुजरात हाई कोर्ट ह्यू एंड क्राई हो गया, मारुति इंटरप्राइजेस, ये सब हमारे अगेंस्ट में है। पर हमें समझना है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या स्टोरी बदलेगी और ये जजमेंट हमारे फेवर में कैसे आना चाहिए। आई एम गिविंग फूड फॉर थॉट। आप लोग कईयों को वॉच करते हैं, कीप वॉच, लेकिन अपने रिप्लाई टू सो कॉज नोटिस जब बनाए, अपील जब बनाए आप, फर्स्ट अपील, इन सब पॉइंटों को जरूर डालिएगा। अभी जीएसटी 80 अब फुल्ली ऑपरेशनल हो रहा है, उनकी वेबसाइट डाउन थी तो डेट भी बढ़ा दी उनने, 31 जुलाई 2026। नेशनल वर्कशॉप हुई थी दिल्ली में, प्रेसिडेंट साहब संजय कुमार मिश्रा जी लर्नेट थे वहां पे। वहां 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके सामने रेज किए गए। भैया मुझे देख ले भाई, बड़े भाई मोबाइल देखेगा तो कहते काम चलेगा, फिर तू मेरी विश लिस्ट से बाहर हो जाएगा। मेरे साथ वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है बॉस। सिर्फ क्वेश्चन थ्रो नहीं करना है, कनेक्ट करना है हमको एक दूसरे के साथ। उनके पास 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली आए थे। सर, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने कई ऑर्डर सिर्फ लिमिटेशन पे उड़ा दिए हैं, तो क्या जीएसटी 80 को कॉन्डोनेशन के पावर हैं? और कई स्टेट बेंच में ये अपील जा रही हैं। देयर आर 31 स्टेट बेंचेस plus 1 principal bench at 45 location. डिफरेंट स्टेट बेंचेज में यही अपील जा रही है कि मेरा OIA बार्ड बाई लिमिटेशन हो गया है। तो क्या जीएसटी 80 को पावर है कंडोन करने की? उनसे पूछा गया सर अगर डिफरेंट स्टेट के पास जाएंगे, डिफरेंट बेंचेज के पास जाएंगे तो डिफरेंट जजमेंट आएंगे। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि प्रिंसिपल बेंच में कोई स्पेशल बेंच फॉर्म कर दें और वो सारे सब्जेक्ट मैटर क्लब होके टैग होके स्पेशल बेंच सुने, चाहे वो दिल्ली का मैटर हो चाहे वो मुंबई का मैटर हो, और एक बार में डिसाइड हो जाए, जिससे डाइवर्जेंट स्टेट बेंचेस के ऑर्डर नहीं आएंगे। दूसरा क्वेश्चन उनको पोस्ट किया गया 16(2)(c), पैन इंडिया इशू है। अब आपने पैन इंडिया डिसीजन देने के लिए छोड़ दिया तो कोई कुछ कहेगा और कोई with the name of agree to disagree. That will not create the uniformity.
हमें सटल प्रेसिडेंट चाहिए, हमें कंफ्यूजन। वो ऑर्डर जो स्पेशल बेंच पास करेगी फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे ना। लेकिन एक बार जीएसटी एटी में कंफ्यूजन तो नहीं रखें कि यहां इसने ये पास किया, यहां तो ऑफिसर के पास जाइए कितना चैलेंज होता है, उसको हाई कोर्ट का जजमेंट दिखाइए, वो मानने को तैयार नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट भी वो मानने को तैयार नहीं है, बोले ना हमको समझ में नहीं आता। हाँ, एक चीज लेके आएंगे तो समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना, पक्का ना। अब उसमें नंबर कितने होने चाहिए वो आपका निगोशिएशन है। सर हम इस जीएसटी में जी रहे हैं, इस जीएसटी के अंदर हमारी सर्वाइवल चल रही है। तो ये 2 क्वेश्चन थ्रो किए गए, तो अभी एक स्पेशल बेंच फॉर्म हुई है ऑन लिमिटेशन। जितने भी OIA बार्ड बाय लिमिटेशन है, जो आप जीएसटी एटी में अपील फाइल कर रहे हैं फॉर कॉन्डोनेशन, क्योंकि वो बार्ड बाय लिमिटेशन करते हैं, मेरिट पे तो डिस्कशन करते ही नहीं है। फिर दे आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग ऑन मेरिट, सीधे बार्ड बाय लिमिटेशन। वो सारे मैटर उन्होंने कहा है कि स्पेशल बेंच, प्रिंसिपल बेंच के पास एक बनाई गई है, वो सुनेगी। तो सारे मैटर वहां मूव कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई मैटर किसी भी जीएसटी एटी पैन इंडिया हो, इमीडिएटली मूव टू रजिस्ट्रार ए रिक्वेस्ट कि ये वाला मैटर भी उस मैटर के साथ टैग कर दीजिए। आपका भी झंझट खत्म, क्योंकि वहां आर्ग्यू ब्रॉड लेवल पे होगा और यहां आर्गुमेंट माइन्यूट लेवल पे होगा। 16(2C) पे भी वॉच रखिएगा। अब 16(2C) के आर्गुमेंट मैं मैडम के सामने कर रहा हूं। मैंने मैम से कहा, मैम आप एक चीज बताइए मैम, 17, 18 और 18, 19 में जब जीएसटी आया था, हमने सप्लायर को जमा करा दिया, पे कर दिया। सप्लायर ने टैक्स जमा गवर्नमेंट को नहीं किया, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? आपने लॉ में प्रोविजन बनाया था, GSTR 1, 2A, आपको याद आ रहा है? 2 भरेंगे, 1A, फिर 3B भरेंगे। आपने कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। इनिशियल ईयर में GSTR 2A आना चाहिए था, आप कभी लेके नहीं आए। आप लेके आए फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ जनवरी 2019, उससे इवॉल्व हो रहा है वो। तो पहले सालों में 17, 18, 18, 19 हमको तो मालूम ही नहीं था मैम कि सप्लायर ने टैक्स ले लिया और वो जमा, और फिर भी आप हमें पेनलाइज कर रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। किसी ने बोलना स्टार्ट, कौन था? यू कैन नॉट कंपेल मी। तो मैंने कहा रुक जा यार, अभी स्टार्ट कहां हुआ, मैं आपको सब सुनाऊंगा। अब 2A आ गया मैम, सेकंड पॉइंट 2A आ गया, पर मैम गारंटी के साथ आप ये नहीं कह सकते कि जो इनवॉइस बायर के पास है उसका टैक्स का पेमेंट सप्लायर ने कर दिया है। Am I right in saying so? यानी 2A आने के बाद भी मेरा दर्द खत्म नहीं हुआ मैम, और आप कह रहे हैं मैं रिवर्स करूं। तीसरा मैंने पॉइंट दिया मैम को, मैंने कहा मैम एक प्रोविजन है 41 सबसेक्शन 2, आपने देखा है क्या मैम? रूल 37A आपने देखा है क्या? जैसे ही मैंने कहा, मैम ने सीधा कहा विमल जी चाय की बात थी, प्रोविजन मैं तो आपके फेवर में। सर कितना मजा आता है ना कई बार, और जब मेल फीमेल आमने सामने होते हैं ना तो वो डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। और जब वो मन बना के बैठी है, ते पसंद को नहीं ते पसंद, उसने मन बना लिया है, तो फिर बहुत मुश्किल है उसको समझाना। बोले बेमल जी मुझे प्रोविजन नहीं देखना, जो बोलना है बोल दीजिए, चाय हो गई क्या आपकी? तो मैंने बोला मैम ठीक है मैं बोल देता हूँ, मैम मैं बोल देता हूँ। बट रूल 37A किसी को मालूम है? यहाँ पे हाथ उठाइए, किसको मालूम है? 1, 2, 3, 4। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का 9(9)C आपने भरा था ना, और 37A अगर नहीं मालूम है, देखिए जीएसटी में ना मैं बताऊं, आप कॉम्प्लायंस में आपको फीस नहीं मिलेगी। कॉम्प्लायंस में इट गेटिंग सब इतना रैट फाइट हो रही है। आपको फीस मिलेगी एडवाइजरी में, कंसल्टिंग में, लिटिगेशन में, डायग्नोस्टिक में, हेल्थ चेक में। और कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट बिना जीएसटी के
नो वे। मैंने क्यों बोला, आपने रूल 37A देखा क्या? जिसमें 5-6 लोगों ने हाथ उठाया, और 24-25 के लिए स्पेसिफिकली एक इंस्ट्रक्शन आया था रूल 37A पे, और मुझे नहीं मालूम, और मैंने 99C भरा है। होता इसीलिए 99C मैं सॉरी टू से सर्टिफिकेशन से बाहर हो गया था। हम नंबर्स फीड कर रहे थे, मैथमेटिकल, हम वो करके नहीं दे रहे थे जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी हमसे। अब ये रूल 37A है क्या और 41 सबसेक्शन 2 है क्या? रूल 37A जो 99C के लिए आया था, उन्होंने कहा था कि बिमल जी, अगर आपका सप्लायर पेमेंट नहीं करेगा तो आपको रिवर्सल मारना पड़ेगा, और जब आपका सप्लायर पेमेंट कर दे तब आप रीअवेल कीजिए। तो जब आप रीअवेल करेंगे इस क्रेडिट को, आप उस ईयर में दिखाइएगा। आर यू रिकॉलिंग? पर इसका कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? 41 सबसेक्शन 2। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? 41 सबसेक्शन 2 substituted prospectively from 1st October 2022। ये डेट इंपॉर्टेंट है। कब से प्रोस्पेक्टिवली डाला गया? 1 अक्टूबर 2022 से। 37A कब आया? 26 दिसंबर 2022 से। डेट इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन क्या है वो बताता हूं मैं आपको। प्रोविजन बोलता है कि अगर आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा बायर को, along with इंटरेस्ट। और जब आपका सप्लायर पेमेंट कर दे तब आप रीअवेल कर लीजिए। ये प्रोविजन क्लियर है सर? मैंने मैम के सामने आर्ग्यू किया। 37A भी बता दूं जिससे और क्लैरिटी हो जाए। मान लीजिए मेरा इनवॉइस 1 मई 24 का है, पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। आप क्रेडिट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं एज ए बायर, बट 2 कंडीशन। आपका सप्लायर इस इनवॉइस पे हर हाल में 30 सितंबर 2025 तक पेमेंट कर दे। याद आ रहा है? 3B के जरिए याद आ रहा है? अगर सप्लायर ने नहीं किया तब वो कहता है कि तू रिवर्स कर बाय 30th नवंबर 25। आ रहा है याद? वही 24-25 के इंस्ट्रक्शन में डाला था 99C में। जस्ट तो अब मैं मैडम से आर्ग्यू कर रहा हूं। मैडम से मैंने कहा, मैम ये लॉ में रिवर्सल का प्रोविजन पहली बार आया 1 अक्टूबर 2022 से। मैम इसकी 2 बातें हैं। अगर रिवर्सल पहले था 17, 18, 18, 19, 19, 20, तो ये प्रोविजन लाने की क्या जरूरत थी? अगर था तो लाने की जरूरत क्या थी? और अब लेके आए हैं, वो भी प्रोस्पेक्टिवली लेके आए हैं, तो क्वाइट इंप्लाइड पास्ट पीरियड के लिए रिवर्सल एप्लीकेबल। आर यू ऑल गेटिंग इट? आर यू ऑल गेटिंग इट? इंटरप्रिटेशन। अब मैम को थोड़ा सा ये लगने लगा था कि यार ये ना, बिमल जी आप ना टैक्स पेयर के फेवर में ज्यादा बोलते हैं। आप टैक्स पेयर के फेवर में ज्यादा बोलते हैं। हमें कौन देखेगा? हमको तो टैक्स मिला ही नहीं। मैंने कहा आपका डिपार्टमेंट काम ही नहीं करता मैम। बोल गया जल्दी, कई बार मुंह से निकल जाता है, जल्दी में निकल गया। जैसे ही मैंने बोला मैम मेरी ओर, बोले बिमल जी चाय हो गई क्या? ठीक पकड़े हो, इसने ऐसी चाय बहुत पी है। तो मैंने कहा मैम गुस्सा मत कीजिए, बट मैं सच कह रहा हूं आपका डिपार्टमेंट काम नहीं करना चाहता। तो मैम ने पूछा कैसे आप बोल रहे हैं इस बात को, इतना बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं आप? मैंने कहा मैम पास पीरियड के लिए अगर आपको ये टैक्स लेना है तो आपके पास प्रोविजन है। उन्हें पूछा कौन सा प्रोविजन है? सेक्शन 76। वो कहता है कि अगर आपने कोई भी अमाउंट एज ए टैक्स कलेक्ट किया है तो गवर्नमेंट को पावर है, वो आपसे रिकवरी कर सकती है। और वहां 73, 74 का टाइम पीरियड एप्लीकेबल नहीं है।
तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैम आप उस डिफॉल्टिंग सप्लायर से रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन 1 अक्टूबर 2022 के बाद आपको लॉ पावर देता है 41 सबसेक्शन 2 कि आप रिसिपिएंट से रिवर्सल मांग सकते हैं, बट इट इज ओनली प्रोस्पेक्टिव, नॉट रिट्रोस्पेक्टिव। मैम, जब मैम से ये बोला तो मैम को थोड़ा सा उनका फेस रीड कर रहा था मैं, तो मैम को लगा यार लॉजिकल तो ठीक बोल रहा है ये, तो तब तक थोड़ा सा रिदम बनने लगा था, जो ना था ना वो थोड़ा सा बैलेंस हो रहा था, मैं चेहरे से रीड कर पा रहा था। तो मुझे भी बैलेंस रीड करना आता है, कहाँ कहाँ कैसे है। तो एक लास्ट आर्गुमेंट मैंने लिया, मैम एक लास्ट आर्गुमेंट, एडवर्सी करना आप मेरे अगेंस्ट में। मैम आपने आईएमएस का नाम सुना है? आईएमएस आप लोगों ने सुना है? अब आईएमएस का आर्गुमेंट 16(2)(c) में, दैट इज द ब्यूटी, दैट इज व्हाट द लिटिगेशन, दैट इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन वी नीड टू लर्न, कि आईएमएस का आर्गुमेंट 16(2)(c) में कैसे एप्लीकेबल होगा। लिसन, ऑल ओके? पक्का एक्सरसाइज करता है ना? पक्का? हाँ, ये करने का मतलब यहाँ कुछ हो रहा है, नहीं डराया मत कर आजकल बहुत डर लगने लगा है नहीं, इट इज इंपॉर्टेंटली नीडेड, आई एम टेलिंग यू, वी नीड टू लुक आफ्टर आवरसेल्फ। हम रहेंगे तो जहान रहेगा, हम रहेंगे तो जहान रहेगा, पहले अपने को संभालो, होता रहेगा सब जहां होना है। क्लाइंट गया, कोई जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मेरा पर्पज देखिए, आपके साथ इतना इंटरेक्टिव करने का पर्पज बड़ा डिफरेंट है। देखिए जब बड़े बड़े सेमिनार में बोलते हैं ना, तो वहाँ 1-on-1 मैं आपको देख भी नहीं पा रहा, आप भी मुझे स्टेज से देख रहे हैं, एक डिस्टेंस। यहाँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपने कब मोबाइल उठाया तो यहाँ तो कम से कम मेरा इतना तो आपसे बन ही जा रहा है क्लोज, कि कभी आप मिलेंगे अब दोबारा मुंबई में तो मैं पहचान जाऊंगा, सर आए या सर आके पहले बार इन्हीं ने बुलाया था मुझे WIRC में। See, GST law is not restricted to Mumbai now. We can do from any corner, Kashmir to Kanyakumari. और हम फाइल कर रहे हैं अभी, Kashmir to Kanyakumari. GST law is the beauty. Sitting here, you can do pan-India practice. Listen the IMS context in 16(2)(c. मैंने कहा मैम IMS पहले ऑप्शनली इंट्रोड्यूस हुआ अक्टूबर 24 से, अक्टूबर 24 से, लेकिन कंपलसरी किया अक्टूबर 25 से। आईएमएस क्या है मैम मालूम है? आईएमएस का मतलब है सप्लायर अपनी इनवॉइस जब GSTR 1 में फर्निश करेगा बाय 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो वो सारी इनवॉइसेस मेरे बायर को आईएमएस डैशबोर्ड पे दिखेंगी। बायर के लिए 4 एक्शन होंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग, नो एक्शन विच इज डीम्ड एक्सेप्टेड। अगर मेरी इनवॉइस है मैम, तो क्वाइट ऑब्वियस है मैं एक्सेप्ट करूंगा। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा वो मेरे 2B में जाएगा और 2B से 3B में जाएगा, और कॉरेस्पॉन्डिंगली जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, सप्लायर के 1 से 3B में लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। यानी हर हाल में अब सप्लायर को इस इनवॉइस का पेमेंट करना ही पड़ेगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? मैम आपने अक्टूबर 25 से इंप्लीमेंट किया है, जिसको आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि जो इनवॉइस मेरे हाथ में है इसका पेमेंट सप्लायर को कंपलसरी करना है, वरना उसके पास नोटिस आ जाएगा जो आपके पास भी दिखेगा डैशबोर्ड पे कि इस इनवॉइस पे टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ। मैम ये विंडो आपको जुलाई 17 से लानी थी, आप कब लेके आ रहे हैं? अक्टूबर 25 से। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। लॉ में प्रोविजन था, आप साइलेंट बैठे हुए थे, आप पहली बार लेके आ रहे हो। हाँ, इसके बाद अगर मैं जानूं और जान के गलती करूं तो सजा है। मुझे मालूम ही नहीं, मुझे आपने विंडो ही नहीं दिया, और आप सेक्शन 74 की बात करते हैं कि मैंने फ्रॉड किया, मैंने सेपरेशन किया, मैंने विलफुल मिसस्टेटमेंट किया। मैम मेरी कुर्सी पे आके बैठिए, दर्द कितना होता है आपने तो बोल दिया।
कि पसंद नहीं है, मैं तो नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। हमारी कुर्सी पे बैठ के देखिए कितना दर्द है हमारे लिए। अब मैं गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट डाइजेस्ट करवा रहा हूं आपको। गुजरात हाई कोर्ट ने 41 सबसेक्शन 2 पे क्या कहा मालूम है? किसने ये गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट पूरा पढ़ा है? एक बंदा कोई भी। मैं सच बताऊं आपको, अगर आपको लिटिगेशन में इन करना है ना, तो आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको पढ़ने पड़ेंगे पैरा, वरना पैरा 32 सफारी रिट्रीट ऑन ओन अकाउंट बोलता है, ये कहां से डाइजेस्ट होगा? गुजरात हाई कोर्ट ने 41 सबसेक्शन 2 कैसे रीड किया और डिपार्टमेंट ने कैसे कन्विंस किया बेंच को। बेंच को कहा लॉर्डशिप देखिए 41 सबसेक्शन 2 आ गया है, ये बोलता है ना सप्लायर जब दे देगा इसको मिल जाएगी, फिर प्रॉब्लम कहां है? सप्लायर दे देगा तो इनको क्रेडिट मिल जाएगी, फिर प्रॉब्लम कहां है? बेंच भी खुश, जबकि वहां पे 2 और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के डिस्कस हुए थे गुजरात हाई कोर्ट में प्री जीएसटी के। सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट आपको सैंडविच में मिलती है, राइट? वहां भी इशू था कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस बाय द सप्लायर कैन बी ए ग्राउंड टू डिनाई क्रेडिट फॉर द बायर। वहां भी ये इशू था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है के इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू कांट डिनाई क्रेडिट फॉर द फॉल्ट ऑफ सप्लायर। वैट रेजिम का दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, शांति किरण इंडिया, यू कांट डिनाई क्रेडिट। पर दोनों जजमेंट को गुजरात हाई कोर्ट ने नहीं माना, बोला ना ना इसका कोई मतलब नहीं है, 41 सबसेक्शन 2 आ गया ना, वो बोलता है सप्लायर जब दे देगा तुमको क्रेडिट। लेकिन कहीं भी ये डिस्कशन नहीं हुआ लॉर्डशिप, ये प्रोविजन पहली बार 1 अक्टूबर 2022 से लाया गया है। मैं पुराने क्रेडिट की बात कर रहा हूं लॉर्डशिप, जब मेरे पास अदर प्रोविजन एप्लीकेबल है 76, और ये प्रोविजन जब प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द पास्ट पीरियड? इट इज नॉट एक्सप्लेनेशन, इट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ 41 सबसेक्शन 2। लॉर्डशिप, इसके पहले जो प्रोविजन थे जीएसटीआर 1, 2A, 2, 1A, 3B, ये सारे प्रोविजन 1 अक्टूबर 2022 से ओमिट हुए हैं। यानी इनको 2A लाना था, 2 भरना था, 1A आना था, कुछ भी नहीं आया लॉर्डशिप। तो आप 41 सबसेक्शन 2 को रिलाई मत कीजिए पास्ट पीरियड के लिए। आर यू ऑल गेटिंग इट? आई एम डैम श्योर दिस इज ऑल गोइंग टू बी डिस्कस्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट। अभी होता क्या है ना, विथ ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू ऑल लॉयर्स कम्युनिटी, ताजमहल होटल लिमिटेड इनकम टैक्स का जजमेंट जीएसटी में पढ़ाते हो, मॉल और होटल में डिफरेंस कर देते हो, जबकि मैटर सेम है। और हम सब यहां बैठ के क्लास लगा रहे होते हैं, विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट हम एग्री डिसएग्री भी करते रहते हैं। लॉट ऑफ लिटिगेशन। तो मुझे गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट पे जहां जहां डिफरेंस नजर आए, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी, एंड आई एम डैम श्योर इस सारे मैटर सुप्रीम कोर्ट में आगे डिस्कस होंगे। 16 सबसेक्शन 4 टाइम लिमिट, अगर आपने सुना था पास्ट में बहुत नाटक हुआ था, और मैंने भी कई जगह डेलिब्रेट किया था, हमने एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में भी डाली थी, एंड आई सेड उस पे एमनेस्टी आएगी, बहुत पहले कही थी मैंने, एंड एमनेस्टी केम इनटू द पिक्चर। 16(2)(c में एमनेस्टी तो नहीं आएगी, बट आई एम डैम श्योर सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड अकॉर्डिंगली, एंड हु नोज जीएसटी 80 विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। If all the matter clubbed together, tacked together, decided by a special bench, we might get relief from GST 80 only. मैं आता हूँ। अब सर ने ना एक फिर काउंसिल आके बोल दे कुछ गलती हो गई हमसे। लॉ में गलती का कोई प्रोविजन नहीं है। आपको याद है, जैसे मैंने आपको वीकेसी फुटस्टेप बताया, ऐसे मोहित मेटल मिनरल जजमेंट है ना, आप यू कांट डबली अप्लाई। कस्टम ड्यूटी भी ले लो ओशियन फ्रेट पे, और फिर तुम यहाँ पे जीएसटी भी मांग लो। तो कई बार हमारी भी सुनती है,
और इस पे उनने एग्री कर लिया कि हाँ डबल टैक्सेशन बन रहा है तो नहीं लेंगे। सी जीएसटी लॉ इज इवॉल्विंग, इनको भी समझ में आता है, पर अपने मुंह से कैसे मान लें? जो रूलिंग पार्टी है जानती है गलती हुई है, पर मान कैसे लें? घुमा घुमा के। सर ये कंपल्सन है, चॉइस नहीं है। मैं अगर किसी जगह का बंदा हूं तो वहां की गलती कभी भी एक्सेप्ट, हाँ ठीक है, वे फॉरवर्ड खोजूंगा कि कैसे करेक्शन किया जा सकता है। सो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि 16(2)(c आप पर अपने फाइट ग्राउंड जरूर रखिएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव आज यहां था कि अगर रिप्लाई लेवल पे है या अपील लेवल पे है तो आपके पॉइंटर्स उसमें आने चाहिए। Am I clear? Coming back to related one, एक बार क्लोज कर लेने दे, वरना मेरे बैक टू बैक वैसे ही हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं, उसके बाद टाइम मिलेगा करेंगे। हाँ या यस करेक्ट। Sir, we should claim refund of it. If that ITC made available to you, then to the extent whatever you have paid to the government is a deposit. It's a take off, shape of deposit. Then you can always ask for the interest on that. I'm saying that double can't happen. But nevertheless, come to the third topic which he has gone. It's coming. Okay, listen. सर एक पार्ट तो ये हुआ, लेकिन आप एक अनदर पार्ट जो इंटरेस्टिंग पैन इंडिया ट्रैवल कर रहा है हम सबके लिए, वो ये है। अच्छा एक टॉपिक करता हूँ, उसी से कनेक्ट करूंगा एंड तब तक 12:30 12:35 तक खत्म करूंगा। बिशन भाई ठीक है ना? क्योंकि मुझे भी अपने सब्सिक्वेंट स्पीकर को सफिशिएंट टाइम देना है। एक केस स्टडी करता हूँ, फीस। हम सबके लिए पैन इंडिया चैलेंज है कि क्लाइंट से फीस कैसे ली जाए। एम आई राइट? मुंबई में है क्या? है या नहीं है? अगर तरीका बता दिया तो मुझे क्या मिलेगा? सर ने क्या कहा मालूम है? आज का लंच। नॉट एन इश्यू। नहीं, बट रियलिस्टिकली रियल केस स्टडी एंड उससे कनेक्ट करूंगा मैं आपको। एक क्लाइंट मेरे पास एक नोटिस लेके आता है, सो कॉज नोटिस। उसमें एलिगेशन ये है क्यों ना तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, बिकॉज यू टुक रजिस्ट्रेशन बाय मींस ऑफ फ्रॉड। दिस इज द सो कॉज नोटिस डेटेड 16 मई 2023। 16 मई 2023 का नोटिस है। क्लाइंट आता है मेरे पास डिस्कशन करने के लिए मेरे ऑफिस में, एंड विश्वास मानिए प्रैक्टिस का एक तरीका है। अब कोई ये नोटिस आपके पास भी लेके आए, यू ट्रीट लाइक मैं आपका क्लाइंट हूँ, आपके पास लेके आया हूँ, आप इसका रिप्लाई ड्राफ्ट करेंगे, एम आई राइट? कितना फीस चार्ज करें? सर एनी अमाउंट मुंबई चार्ज करता है। क्विकली बोलिए सर। 5,000। नेक्स्ट। एनीवन? बढ़ाना है? बोली बढ़ाना है? सर ये रियलिटी है। इस रियलिटी का और आयरनी क्या है मालूम है? हम कुछ नहीं करते, अपने नीचे वाले बच्चे को देते हैं। बच्चा भी कुछ नहीं करता, उसके पास भी कई बहुएं आ गई हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, वो उस पर डालती है या डालता है, वो भी उनको रिप्लाई बना के दे देते हैं। वही सटा सट लेके वो मेरे पास आते हैं, देखते हैं इंग्लिश भी बड़ी अच्छी ड्राफ्ट है यार, तू इतना समझदार हो गया, और मुझे भी कुछ नहीं पढ़ना, कॉपी पेस्ट कर, साइन कर और आगे बढ़ा। सर हमने एआई का यूज तो करना है, पर एआई इज असिस्टेंट, नॉट द मास्टर। लिटिगेशन में एआई कैन नॉट बी ए मास्टर, योर ह्यूमन इंटेलिजेंस विल प्रिवेल। पर हम कर क्या रहे हैं? सर ड्राफ्टिंग करते हैं ना, वर्ड बनाने के लिए माइंड लगाना पड़ता है, वोकेबुलरी क्रिएट होती है विद इन इनसाइट, हम लिखते हैं, याद होता है। एआई हमको याद नहीं करने दे रहा। आजकल बर्थडे के जो हमको गिफ्ट सेंटेंस मैसेज भेजने हैं, वो भी हम चैट जीपीटी से बनवा के आगे बढ़ाते हैं।
हम अपने वर्ड में क्या लिखेंगे, हैप्पी बर्थडे, उसके बाद क्या लिखना है, तुझे ये मिले वो मिले, कुछ वो एआई से पूछेंगे, वो एआई बताएगा ये सुंदर है कि नहीं है, मुझे सुंदर लगा नहीं लगा। सर दैट इज व्हाट द आयरनी ऑफ लिटिगेशन टुडे। सर नहीं होने चाहिए, ओनली असिस्टेंट नॉट मास्टर। ठीक है, क्लाइंट जब मेरे ऑफिस में आता है ना सर, आप तो 5,000 बोल रहे हैं, मैं फ्री में डिस्कशन ऑफिस में नहीं करता, देयर इज चार्जेज, फीस। यहाँ आके मैं आपके साथ सारी चीजें करता हूँ। जतिन भाई वेलकम, मैंने बोल दिया 15 मिनट लूंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि हम लोग डिस्कशन के चार्जेस लेते हैं ऑफिस में, और उसके बाद हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो उसके चार्जेस अलग हैं, वो 5,000 में खत्म नहीं होंगे। तो वो बंदा इतनी दूर से चल के आया, उसका ये है कि सर, तो मैंने बोला भाई तू किस लिए आया है, तो रिप्लाई कोई भी बना सकता था। बोले नहीं सर मुझे आप ही से करवाना है। तो मुझे लगा इसमें जरूर कुछ ना कुछ है, तो 2-3 क्वेश्चन मैंने उससे पूछे। पहला क्वेश्चन पूछा तूने कब रजिस्ट्रेशन लिया, उसने कहा February 2018, जबकि उसका नोटिस आया है 16 May 23, 5 साल बाद। एंड वो भी एलिगेशन, यू टुक रजिस्ट्रेशन बाय मींस ऑफ फ्रॉड। मैंने बोला यार 18 के बाद 23 में फ्रॉड, ठीक है। फिर मैंने पूछा रिटर्न रेगुलर भरते थे तुम? बोला सर सब लेके आया हूं, दिखाऊं क्या? नहीं रहने दे। मैंने अब तो ईमानदारी से बता क्या करता है, चोरी करता है तो कुछ? और बिजनेसमैन विश्वास मानिए, सॉरी टू से है सर, थोड़ा बहुत तो लफड़ा, सीधा साधा आदमी थोड़ी आएगा इलाज कराने के लिए। तो वो बोलता सर करता तो हूँ 20%। क्या करता है 20%? बोले सर कैश में सेल करता हूँ, जीएसटी लगता नहीं है, कच्चा रोकड़ा आ जाता है, और उसकी इनवॉइस फाड़ देता हूँ इनको, आधा 18% में 9% मैं रख लेता हूँ, 9% इनको दे देता हूँ, तो मेरा काम चल रहा है सटासट। तो मैंने आप सटासट क्या करेगा बता? वो सर इसीलिए तो आया हूँ आपके पास। फिर मैं तीसरा क्वेश्चन पूछा तेरी टर्नओवर कितनी है? वो बोलता है सर 250 करोड़। मैंने 250 करोड़ रुपए की टर्नओवर है। तो फिर मैंने बोला फिर ठीक है, फिर क्लाइंट से काम, इसका काम हम कर सकते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तू शॉर्ट सर्विस लेगा या लॉन्ग सर्विस लेगा? शॉर्ट या, उसे समझ में आता है शॉर्ट और लॉन्ग का मतलब। बोले पर जैन साहब लॉन्ग का मतलब ऐसा नहीं। बट सर एक चीज है, मैं आपके साथ काम करने, आपका काम मुझे आपसे ही करवाना है, लेकिन आप मुझे फीस वीस बता दे। बोले मैंने फीस तू छोड़, पहले तू समझ ले तेरे साथ क्या होने वाला है, तू मुझसे करा चाहे मत करा, तू कुछ भी रिप्लाई करना, अब तेरा रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल, वो भी रिट्रोस्पेक्टिव डेट से होगा, और उसका तेरा कुछ नहीं होगा। डिपार्टमेंट तेरे बायर के पास जाएगा और तेरे बायर से जाके ये बोलेगा तुमने जो क्रेडिट लिया है ना वो फेक है, क्योंकि तुम्हारे सप्लाई का रजिस्ट्रेशन रिट्रोस्पेक्टिव डेट से मुंबई में हो रहा है। सब जगह एक हाल है। और फिर सारे लोग तेरे पास आएंगे, बोलेंगे बिमल जी आप भी ऐसे ही, और तेरी समाज में धज्जियां उड़ने वाली हैं। बोले सर आप इतना सब कह रहे हैं, मैं आप ही से काम कराऊंगा, मान लेता हूं मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड होगा, पर सर 1 महीने में एक्टिव हो जाना चाहिए। कैसे होगा वो आप देखिए, अगर 1 महीना में एक्टिव हो गया तो मैं फीस दूंगा आपको लॉन्ग वाली, वरना अदरवाइज आपको फीस। यानी क्लाइंट भी आज की डेट में हमें सक्सेस बेसिस पे, सक्सेस रेशियो बेसिस पे असाइनमेंट देने की बात करता है, और हम में से कई प्रोफेशनल इसी तरह से असाइनमेंट ले भी रहे हैं। आयरनी दोनों तरफ है, बट नेवरदलेस आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ ये केस मैं कर लूंगा, नोइंग दैट 20% का इसने ड्रामा कर रखा है इसके अंदर। आई सेड 1 महीने में एक्टिव करवा दूंगा। बोले सर फिर जो करना है कीजिए आप, फीस आपकी, पर काम मेरा होना चाहिए। मैंने कहा ठीक। 23 मई 23 को मैंने रिप्लाई किया सर, 1 पेज का रिप्लाई विद 2 पैराग्राफ, नो एआई नो चैट जीपीटी। पहले पैराग्राफ में लिखा सर इतना बड़ा एलिगेशन फ्रॉड, लेट मी नो द रीजन और बेसिस कि आप ये इतना बड़ा एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं, आप रीजन और बेसिस बताइए सो दैट आई कैन
reply. I can defend myself. So cause notice must be speaking one. सिर्फ एलिगेशन लगाने से काम, सेटल jurisprudence from Supreme Court, कई जजमेंट हैं, इंक्लूडिंग वृंदावन बेवरेजेस लिमिटेड. सिर्फ आप बोल दीजिए कि चोर है, बेसिस एंड, और हम लोग क्या करते हैं, उसने चोरी की बात कही, हम रिप्लाई मारना दमादम दमादम. किसका रिप्लाई? अरे तू बेसिस और रीजन बता तब रिप्लाई करूंगा. अरे 20% की बात तू लिखता है, इसमें तो मुझे समझ में आता है ना, तूने कुछ लिखा ही नहीं है सो कॉज नोटिस में. और दूसरा पैराग्राफ से कुछ भी करो, मुझे पीएच दे देना, पर्सनल हियरिंग दे देना. 23rd May 23 my reply got submitted. 29th May 2023 registration cancelled, no PH with retrospective date. क्लाइंट भागा भागा ऑर्डर लेके आया, बोले जैन साहब आप ठीक कह रहे थे, ये आ गया कैंसिलेशन वाला. पर सर समझ में नहीं आ रहा, आपको सब चीज मालूम थी, कहीं आप दोनों का पीछे से? मैंने बोला हम दोनों का कोई पीछे से नहीं है रे, ये पूरा इंडिया में हो रहा है. नाम रख दिया ना NGP क्या, हाँ तो बहुत सारा नाम, कई जगह पे कई नाम है, मतलब पूरा पैन इंडिया हो रहा है. इसलिए मैंने तुझसे कहा था. बोले आप क्या करेंगे जैन साहब आप? अब क्या करेंगे आप? तो मेरे पास देखिए ऑप्शन था कि मैं रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता था, बट आई कांट डू 30 days, एक महीने के अंदर करना है. रिवोकेशन कहाँ होने वाला, ये महारथी लोग. अपील में जाऊंगा तो 3+1 month में तो अपील जाती है, फिर उसके बाद तब तक तो इसका बिजनेस बंद. 250 करोड़ इसकी टर्नओवर थी, तो ये तो उसने टाइम कंडीशन डाल दी 1 month की मेरे सर के ऊपर. आई मूव्ड ए रिट पिटीशन इन दिल्ली हाई कोर्ट. दिल्ली हाई कोर्ट में गया, day 1 लॉर्डशिप asked me what is this case all about. I said, Lordship, they have issued a so-called notice and alleging I took registration by means of fraud. Lordship, I responded back. I said, let me know the region and basis to reply, because so-called notice must be speaking one. I also responded, let me have PH. They have not given me any PH, Lordship. They have cancelled my registration, that too with retrospective date, which was never alleged in a so-called notice. That is the reason I am, Lordship, before you, and my prayer, humble submission would be, this notice and cancellation must be vacated. लॉर्डशिप ने डिपार्टमेंट के बंदे को देखा कि भैया क्या कर रहा है तू, तो डिपार्टमेंट का बंदा वो कैंसिलेशन एक पेज का जो ऑर्डर आता है वो ऐसे देख रहा था. 1 मिनट लगा दिया देखने में. मन ही मन में सोचूं ये पढ़ क्या रहा है इसके अंदर. सिंपल कैंसिलेशन है, वो भी रिट्रोस्पेक्टिव डेट के साथ. वो ओपन कोर्ट में बोलता लॉर्डशिप कुछ गलत हुआ है इनके साथ. मैं मन ही मन सोचूं रामचंद्र जी यहाँ कैसे आ गए. तो फिर बोलता है लॉर्डशिप नोटिस में भी इशूड, आई विल फाइल रिप्लाई काउंटर. मैं समझ गया था इसका रिप्लाई काउंटर मतलब ये 6 महीना तक मुझे भुगाता रहेगा, और मैं गया, कुछ नहीं होने वाला. मैंने लॉर्डशिप से कहा लॉर्डशिप जस्ट 2 minutes. लॉर्डशिप आई रिस्पॉन्डेड बैक. आई सेड लेट मी नो द रीजन एंड बेसिस. ही डिडंट प्रोवाइड. सो कॉज नोटिस नॉन स्पीकिंग वन. आई रिक्वेस्टेड फॉर PS, लॉर्डशिप. He is invoking 29 subsection 2 clause E, but a proviso down below he is not reading, which is talking about PH must be given before cancellation. Lordship, any adverse order in GST can't go without PH. Nothing is being done. Now he needs time and time to reply. Lordship, it's too far to fetch. We are all small taxpayer, Lordship. Where we will go? We want to do business. Small taxpayer. लॉर्डशिप को थोड़ी मालूम है 250 करोड़ है. लिटिगेशन की सवाट है सर. जब पूछे तब उनको बताइए ना सर, हम कहाँ जाएं, हम तो छोटे छोटे प्राणी हैं. आप हमें देखिए, आप ही के पास हम आ सकते हैं. लॉर्डशिप कन्विंस है, हाँ बच्चा अच्छा बोल रहा है, बच्चे को दर्द है. डिपार्टमेंट को तुम लोग बहुत परेशान करते हैं. यू पीपल आर ट्रैवलिंग. कहाँ जाएंगे ये लोग? ईज ऑफ बिजनेस तुमने टॉसअप कर रखा है, इसे नहीं चलेगा. This cancellation order and notice all vacated, or you people are traveling these guys to come to the court, pay 5,000 rupees to Mr. Jain as a legal cost. So 5,000 रुपए मुझे legal cost, cancellation vacated, number active within 1 month.
तो इसमें एक सिल्वर लाइनिंग आपसे जो मुझे डिस्कस करनी है वो इंपॉर्टेंट ही है, जो लिटिगेशन का पार्ट है। ऑल्टरनेट रेमेडी थी मेरे पास, रिवोकेशन एप्लीकेशन, अपील नहीं गया। मुझे डर भी तो था कि ऑल्टरनेट रेमेडी पे मेरी रिट डिसमिस हो जाए। बट देयर इज 4 इंपॉर्टेंट सिचुएशन आपको माइंड में रखनी है, इवन दो ऑल्टरनेट रेमेडी इज नॉट ए बार। वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस था ना, था या नहीं था? था ना। सेकंड, वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट था क्या? कौन सा? आर्टिकल 19(1)(g), राइट टू डू बिजनेस। व्हेन यू आर चैलेंजिंग वायर्स ऑफ लॉ, मैंने कोई चैलेंज नहीं किया। एंड लास्ट वन, एक्सेसिव जुरिडिक्शन, व्हेन ऑर्डर इज बीइंग पास बियॉन्ड जुरिडिक्शन। तो यानी आपको ये 4 सिचुएशन याद रखनी है। अगर ये हैं देन ऑल्टरनेट रेमेडी इज नॉट ए बार। तो ये वाली बात मैंने आपको समझा दी। अब इससे कनेक्टेड एक पॉइंट इनका था, वो जो लास्ट पॉइंट, एंड खत्म। सर जीएसटी में ना एक कैंसिलेशन, और डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ एलिगेशन लगाता है कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपकी क्रेडिट फेक है। आपसे कहेगा आपके इमीडिएट पीछे जो L1 L2 है ना, उनने फेक रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उनने सिर्फ 1 भरा है, 3 भी नहीं भरा, और उसी क्रेडिट को यूज किया गया है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, राइट। दूसरा एलिगेशन ये लगाएगा कि अरे आपका तो ई बेबल है ही नहीं है, मूवमेंट कैसे प्रूव होगा, कैसे हम मान लें। तीसरा एलिगेशन लगाएगा ये सप्लाई तो एग्जिस्टेंट ही नहीं है यहाँ पे, 18-19 की ट्रांजैक्शन है, 23-24 में जाके बोलेंगे ये वहां पे है ही नहीं है। अविनाश भाई गुड मॉर्निंग, ये अवेलेबल ही नहीं है। सर डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मालूम है? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सर मैं पोर्टल पे सिर्फ इमीडिएट सप्लायर की कॉम्प्लायंस देख पाता हूं। एक जजमेंट अभी मद्रास हाई कोर्ट से आया, उसने ईबे बिल नहीं बनाया था, वेगमेंट स्लिप नहीं थी उसके पास। लॉर्डशिप ने कहा यार ईबे बिल 18-19 में जब शुरू में आया तब बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं था। कई बार ईबे बिल में आपसे मिस्टेक, अरिथमेटिकल मिस्टेक हो जाती है। डज इट मीन दैट मूवमेंट नहीं हुई है? आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो ई-कॉम ग्लोबल कॉफी वाला जो कोर्ट करते रहते हो, वो और भी तो डॉक्यूमेंट दे रहा है ना तुमको। अरे उसके पास सेल रजिस्टर है, परचेज रजिस्टर, अगर परचेज नहीं हुआ तो सेल हुआ कैसे? सामने वाले को तो माल मिला है ना, जिसको मैंने बेचा। जब ये डिस्प्यूटेड नहीं है तो ये डिस्प्यूटेड कैसे हो गया? डॉक्यूमेंटेशन है, सारे प्रूव होते हैं, और तुम ब्लेम किए जा रहे हो। सर ये एक ही ऑफिसर एक ही केस में एक बंदे को फेवरेबल ऑर्डर देके बैठा हुआ है और दूसरे को बोलता है तेरे को नहीं दूंगा। कल ही मैं एक साथी के साथ आ रहा था, वो भाई हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रदर थे, मुझसे बोलते हैं जैन साहब मैंने उसको ऑर्डर दिखाया, देखिए आपने इसी केस में किया है। बोले तो किया तो क्या मतलब है, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उसने 1.5 साल तक उसका ऑर्डर पास नहीं किया, अब उसका ट्रांसफर हो गया। उसने ऑर्डर पास क्यों नहीं किया मालूम है? उसने ऑर्डर इसलिए पास नहीं किया, अब वो अगेंस्ट में करेगा तो फंस जाएगा, तो लटका के रखा। बोले जब मैं जाऊंगा उसके बाद कराना तू। सर लिटिगेशन की धज्जियां उड़ी हुई हैं। जजमेंट फ्रॉम कैलकाटा हाई कोर्ट, LGW इंडस्ट्रीज, संचिता कुंडू, गर्गो ट्रेडर्स, ओडिशा हाई कोर्ट, ब्राइट स्टार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कई जजमेंट ने, सनक्राफ्ट एनर्जी जो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल किया। सी कोर्ट बार बार इस बात को बोलता है कि फॉर एलिगेशन ऑफ फेक कनाइवेंस नीड टू बी प्रूवन। आप चेक कीजिए इनके डॉक्यूमेंटेशन, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि सारे डॉक्यूमेंट। तो यानी हाई कोर्ट से जस्टिफिकेशन और रूलिंग फेवर में मिल रही है, प्रोवाइडेड यू कैरी ऑन विथ योर लिटिगेशन एंड यू पुश हार्ड एंड यू डू योर बेस्ट कि हाँ हम करके दिखाएंगे। तो सारे जजमेंट हमारे फेवर में आ रहे हैं एंड वी आर गेटिंग रिलीफ एज वी आर लुकिंग फॉर। सो मेरा टेक आपसे यही है सर, लिटिगेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज फुल डे जीएसटी का है, यू गॉट लर्नड स्पीकर्स फॉलोड बाय मी, सो आपको और भी बहुत पर्सपेक्टिव देखने मिलेंगे। सो यू मे हैव योर ओन इंटरप्रिटेशन, नो प्रॉब्लम, लेकिन बट कोशिश ये कीजिए
कि लड़ेंगे, लोरबो रे मोरबो रे, वो कैलकाटा में ममता बनर्जी की तरह, वैसे मत मरिएगा। मरना मतलब करके दिखाना, इसकी आंखों में उंगली डाल के इससे निकलवाना है ऑर्डर। वो चाय पीने वाला वो याद रखिएगा, मैडम तैयार नहीं है, उस मैडम के बारे में बता दूं, उन मैडम ने बाद में कम्युनिकेशन हुआ, अच्छा कम्युनिकेशन हुआ तो उन्हें मेरा मोबाइल नंबर ले लिया, मैंने भी अपना मोबाइल नंबर उनको दे दिया, हम दोनों ने नंबर एक दूसरे से आदान प्रदान कर लिया, अब तो हम दोनों दोस्त हैं। मैं उनके स्टेटस लाइक करता हूँ, वो मेरे स्टेटस लाइक करते हैं। And honestly, she passed the order in my favor. She passed the order in my favor. और उन्होंने कहा it should be collected from the defaulting supplier. मैंने आपको बताया इसलिए नहीं था, लास्ट तक छोड़ रखा था, जो मानने को तैयार नहीं थी लास्ट में कह दिया एक बार ठीक है दोबारा डेट करते हैं। तो कोशिश करने में वो सौरभ भाई कुछ कह रहे थे, वो मैं याद नहीं कर पाया। हाँ सौरभ भाई एक बार और सुनाओ सबको, वो क्या था लास्ट वाला? सर दिस इज डिफरेंट, आई वाज सेइंग यू तना बैठ कर ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे तकदीर अपनी, लिख दे तकदीर अपनी। And Bimal bhai is taking this is seriously. He is creating lot of things very exciting for the GST part. So let's have a big round of applause for Bimal bhai also. सर अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई वॉन्टेड के सौरभ भाई भी खड़े हों, WIRC डायनेमिक, ही इज़ डूइंग लॉट ऑफ प्रोग्राम। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट दिस टीम, होल कंप्लीट टीम लीडिंग बाय सौरभ भाई, बिशन भाई, रिंगिन भाई, सारे लोग यहाँ पे हैं और बोरीवली साथ में अटैच्ड है। सिकंदर भाई का नाम देख लिया था, औरों के नाम नहीं जानता, तो आप लोग जहाँ भी आपको लगे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिल्कुल यू कैन कनेक्ट विथ मी एट एनी फोरम वेर एवर यू वांट। With this, I'm thanking each one of you for listening. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. As we have our impactful chairman, C.A. Saurabh Ajmera ji, under whose leadership we are achieving greater heights at WIRC and celebrating this 75th year in a great manner. So please give big round of applause to our chairman, C.A. Saurabh Ajmera ji. Indeed, a impact what he is creating. I acknowledge the presence of past chairman of the WIRC, C.A. Murtuza Kachwala sir as well. And now I request C.A. Sikandar Yadav ji to give formal vote of thanks to our learned speaker, C.A. Bimal Jain ji. Thank you, Bishan sir. It is a great privilege and honor to propose well-deserved vote of thanks to Bimal sir. Before I formally propose vote of thanks to Bimal sir, I would like to admit one thing, that I am his big fan. Thank you, sir, for such an amazing session that was full of interaction. The clarity you brought to the subject is absolutely great. Sir is expert in subject as well as in humor, which is highly appreciable. लफ्ज़ तो हवा में बिखर जाते हैं, लफ्ज़ तो हवा में बिखर जाते हैं, पर दिल पर उनका असर रह जाता है, पर दिल पर उनका असर रह जाता है। मुझे यकीन है उसी असर से सारे मेंबर्स उसी असरदार तरीके से तालियां बजाएंगे सर के लिए। I welcome the past chairman of WIRC, C.A. Murtuza Kachwala ji, and we do have presence of our next faculty, Jatin Harjai sir and Avinash Poddar ji. Welcome you all. So now we are starting our next session with Advocate C.A. Jatin Harjai ji. I request him to please come on the dais.